Good morning, Namaste, Vanakkam. Welcome back for the first, actually second plenary session. Yesterday there was one session. So may I invite Professor Sailendra, faculty member IRMA, to come on the stage. And I also invite Mr. Narendra Pandey, sector expert. So this session is about the autonomy and independence of SHGs and SHG federations. And there are 4 panelists. I also invite the panelist, Dr. Sudha Kotari, Managing Trustee Chaitanya, and Mr. C.S. Reddy, CEO of AP Mass, Dr. Ritesh Kumar, Project Manager, Institutional Capacity Building, Jivika, Mr. Kaushik Gupta, Lead System Strengthening TRIF. Actually, agenda for this session will be set by 2 women. And may I invite her? Sunita from Kamareddy. ఇప్పుడు మీరు మీ ఫెడరేషన్ అటానమీ ఉందా, ఇండిపెండెంట్ గా పని చేస్తున్నారా, లేకపోతే ఇంటర్ఫరెన్స్ ఉందా, వేరెవరాచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారా, ఇట్లాంటి విషయాల మీద ఒక 5 నిమిషం మాట్లాడండి. 2 నిమిషాలు. उपस्थिति सभी को नमस्कार. मेरा नाम सुनीता. अंदर की नमस्कारमु. ना पेరు सुनीता. मारी कामारेड्डी तेलंगाना. मैंने कामारेड्डी तेलंगाना से आई हूँ. हमारा समूह तैयार हुआ है तब हमको समूह के बारे में कुछ भी पता नहीं है. वो कैसे चलाना, कैसे करना, वो बोली है वो बचत करना है, बचत को ऋण रूप में लेना है और वापस करना है बोल के, मगर कोई घर में निकलने को तैयार नहीं है. वो सास ससुर भी और पति भी मना कर दिए. तब अभी क्या किए हैं वो, तब हमने थोड़ा ससुर जी को, सास को, हस्बैंड को थोड़ा जानकारी लेके ऐसा करेंगे. वो मान किया है क्या, वो समूह में जाके वो क्या कर रहे हैं बोल के, इतना टाइम लग रहा है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. इसीलिए हमने क्या किया, समूह के समावेश हर एक सदस्य का आंगन में कर दिया. हर हफ्ता में आंगन के करे तो इनका परिवार को पता हो चुके हैं. वो कितना टाइम लग रहा है, वो कैसे कर रहे हैं, वो कैसे बचत कर रहे हैं, ऋण कैसे ले रहे हैं और वापसी कैसे कर रहे हैं. उसी उद्देश्य से हम सभी को, सभी परिवार में मान चुके, सभी परिवार में पता हो चुके हैं वो समूह के बारे में कैसे बोल के. वो परिवार में माने हैं वो इसमें लोन लेना है और लोन लेना है, और किसी रोजगार है तो किसी हमारा कर्ज के लिए और बच्चों को पढ़ाई के लिए ऋण मिलता है बोल के वो पति सास ससुर भी हमको मीटिंग में समावेश में भेज दिया है. अभी हमें क्या किया है, 10 लोगों से पहला 15 लोग 12 लोग थे, अभी 10 लोगों से समूह चला रहे. అంటే ఏ విధంగా అటానమస్ గా దాని మీద మాట్లాడండి. ఎందుకంటే నిన్నటి సెషన్ తీసుకొస్తున్నారు, ఎందుకంటే అయిపోయింది. ఇవాళ మన ఫస్ట్ సెషన్ ఏంటంటే మన సంస్థని మనం స్వతంత్రంగా నడుపుకోవాలి,
ఎలాగ స్వతంత్రంగా నడుపుకోవాలి, ఇక్కడ కామారెడ్డి సంస్థ చాలా స్వతంత్రంగా జరుగుతుంది కలవని అని చెప్పినట్ల ఇది దాని మీద కొంచెం ఫోకస్ చేయండి. మనకు ఆల్రెడీ హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే ఇంకొక 1 అవర్ ఉంది, దయచేసి ఆ విధంగా కొంచెం ఫోకస్ చేస్తే బాగుంటుంది. సుదర్శనంగా ఎలా నడుపుతున్నారు దానికి స్వయం అయితే చెప్పండి, మీరు చేస్తున్నారు కదా, ఎలా చేస్తున్నారు చెప్పండి. ఇది వచ్చి ఇక్కడ చెప్పాలి, తెలుగులో చెప్పు, తెలుగులో చెప్పు. ఇది చెప్పండి. మా సంఘాలు ఒకప్పుడు ఎవరో వచ్చి నడిపించే విధంగా ఉండేనండి. ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తున్నామంటే మా సంఘాల సమావేశాలు కానీ మా సంఘంలో మీటింగ్స్ కానీ మేమే నడిపించుకుంటున్నాము. ఆ సంఘం గురించి మాకు ఆవశ్యకత ఏంటి దాని గురించి మాకు చాలా అర్థమైపోయింది. అంటే సంఘంలో చేరితే ఎంతవరకు మనము వెళ్ళొచ్చు అనే విధంగా అర్థమై మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మా సంఘంలో మేమే నడిపించుకుంటున్నాం. దానికి సంఘానికి సమావేశాలు రావడానికి కట్టుబాట్లు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. మేము కట్టుబాట్లు ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రతి మహిళా సమావేశానికి రావాలి, టైం ప్రకారం రావాలి అనే కట్టుబాటు ఏర్పాటు చేసుకొని అట్లా నడిపించుకుంటున్నాము. ఎవరో రావాలని మా బుక్ కీపర్ మేమే రాసుకుంటున్నాం. మా బుక్స్ మీద మేము ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాం. పర్యవేక్షణ సమాఖ్య మాధ్యమసే మేము అక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకొని మా బుక్స్ మేమే రాసుకుంటున్నాము. ఈ సంఘం నుంచి మళ్ళీ గ్రామ సంఘానికి కూడా వెళ్ళి ఆ గ్రామ సంఘంలో కూడా మా పదాధికారుల ఎంపిక మేమే చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఎవరు ఎలా ఏ విధంగా పనిచేస్తారో ఎవరు ఏ విధంగా మాకు టైం ఇస్తారు అనేది మాకు బాగా తెలుసు. ఎందుకంటే మేము సంఘాల్లో చూస్తున్నాం కాబట్టి గ్రామ సంఘంలో ఎవరైతే చేస్తారో, ఎవరైతే మాకు పని మంచిగా చేయగలుగుతారో, ఎవరైతే మాకు మా డబ్బులు మాకు కానీ మా ఆ మహిళల కోసం అభివృద్ధి కోసం ఎవరైతే పోరాడతారో, ఎవరైతే మాట్లాడతారో వాళ్ళని మేము పదాధికారులుగా ఎంపిక చేసుకోవడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి మేము అప్పుడు గ్రామ సంఘం సమావేశం కానీ ప్రతి సంఘం నుంచి ఒక అధ్యక్షురాలు ఈసీ మెంబర్ గా గ్రామ సంఘం సమావేశానికి వస్తుంది. అక్కడి నుంచి వాళ్ళ ఎజెండా మేము తయారు చేసుకుంటాము. ఏ విషయాలపై మాట్లాడాలి అనేది ఎజెండా తయారు చేసుకొని ఆ ఎజెండా ప్రకారం మేమే నడుపుకుంటామండి. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మండల సమాఖ్యకు ఏ గ్రామ సంఘం నుంచి అధ్యక్షురాలు మండల సమాఖ్యకు వెళ్తుంది. ఆ మండల సమాఖ్యలో కూడా ప్రతి అధ్యక్షురాలు ఖచ్చితంగా మాట్లాడుతుంది. మా గ్రామ సంఘంలో ఇంత రావాలి, మాకు మా గ్రామ సంఘంలో మహిళలు కూడా పని చేయగలుగుతారు, మేము కూడా చేయగలం అనే విషయం మీద ఖచ్చితంగా మాట్లాడగలుగుతారు. బుక్స్ కూడా కోశాధికారి ఉంటారు, బుక్స్ ఎలా రాస్తున్నారు, సమావేశం ఎట్లా నిర్వహించుకుంటున్నారు, బుక్స్ ఎలా రాసుకోవాలి, మేమే రాసుకుంటున్నాము అనే విధంగా కూడా ఖచ్చితంగా చెక్ చేస్తారు. అకౌంటెంట్ పెట్టుకున్నా కూడా ఖచ్చితంగా చెక్ చేసి అది లాస్ట్ లో సమావేశం అయిపోయిన తర్వాత అందరికి చదివి వినిపించి సంతకాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దీనిపైన ప్రతి సంఘం ఏమో సంవత్సరానికి ఒకసారి ఆడిటింగ్ చేసుకుంటామండి. అది మా సిసి వాళ్ళు వాళ్ళ వివోఏల సహాయంతో సంఘం ఆడిట్ చేసుకుంటాము. పుస్తకాల లెక్కలు మళ్ళీ గ్రామ సంఘంలో అంతర్గత ఆడిట్ నడుస్తుంది. 3 నెలలకు ఒకసారి అంతర్గత ఆడిట్ చేసుకుంటాము. అవును, ఇంటర్నల్ ఆడిట్ సంవత్సరానికి ఒకసారి వాళ్ళు సిఏ చార్టెడ్ అకౌంట్ వచ్చి సంవత్సరానికి ఒకసారి మాకు ఆడిట్ చేస్తారు. మండల సమాఖ్య కూడా అంతే. మేము ఇదంతా మా సొంతంగానే చేసుకుంటాం. ఎవరో రావాలని ఎవరో చేస్తారని మేము చూడము. మా మా సంఘాలు మా సంఘాలు మావే, సమాఖ్యలు మావే, పాలన మాదే, నియంత్రణ కూడా మాదే. మేము ఎలా చేసుకోవాలి, ఎవరైతే మాకు బాగుంటది ఎట్లా మేము సిబ్బందిని కూడా ప్రశ్నిస్తామండి. సిబ్బందిని కూడా మీరు ఇలా చేయాలి అనేది మేము సిబ్బందిని కూడా పర్యవేక్షిస్తాము. సబ్ కమిటీ వెరీ గుడ్ అమ్మా, చాలా బాగా చెప్పారు. క్లాస్ చూడండి అందరు ఒకసారి. అభి తక్ మేడం మీ పేరు ఏంటండి? सुनीता गारू. सुनीता दीदी ने बताया कैसा अपना संस्था को हम चलाएंगे. एक स्वयं नियंत्रण, कल सर CS रेड्डी सर भी बोल रहा था ना, कैसा हमारा संस्था को आगे निर्देशन देना, कैसा करना चाहिए, थोड़ा स्पेसिफिक पॉइंट्स भी बताया उन्होंने. उनका कुछ नियम अपना खुद का अपने आपस में नियम बनाया है, मगर खास करके अपना स्टाफ का नियंत्रण वही करते हैं, उनका ऑडिटिंग वही करते हैं, और उनका सिस्टम्स जो बुक कीपिंग है, अकाउंट्स है या कुछ पैसे लेन देन का है. तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने समझाया. मुझे लगता है इससे अपना ये सेशन के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आया है. थैंक यू वेरी मच सुनीता गारू. Thank you, Sunita. Next I invite Jyoti Pawar from Maharashtra.
आप मराठी ज्योति जी आप बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे। आपको 3 मिनट टाइम मिलेगा, मैं टाइम चेक करता हूँ आप बुरा नहीं मानिए, मगर आपको बोलना चाहिए कैसा आपका संस्था अपने हाथ में लेके आप कैसा चला रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और कुछ ये डिस्कशन में कुछ पॉइंट्स भी आप चर्चा के लिए डालते हैं तो अच्छा रहे। ठीक है। थैंक यू। मराठी मी बोलूंगी. हाँ हाँ बोलिए. नमस्ते, माझं नाव ज्योती पवार. मी गेल्या 10 वर्षापासून चैतन्य संस्था राजगुरुनगर या ठिकाणी मी आहे चैतन्य संस्थेसोबत. तर आमच्या संघाची सुरुवात ज्या वेळेला झाली तर त्यावेळेला संघ एकदम छोटा होता, एक 70-80 गट होते आणि संघाचा विस्तार करण्यासाठी आम्ही एका संघातून दुसरा संघ वेगळा तयार केला आणि त्याच्यात मग प्रगती करण्यासाठी थोडस कार्यकर्ते वाढवले. त्यानंतर त्याच्यामध्ये आम्हाला चैतन्य संस्थेचं नियमित मार्गदर्शन मिळालेलं आहे. पण ते मार्गदर्शन मिळत असताना पण आपण म्हणतो ना स्वतः पण काहीतरी करायला पाहिजे. तर स्वतः करायचं म्हणून आम्ही स्वतः कार्यकर्ते वाढवले, स्वतः पदाधिकारी वाढवले. ज्यावेळेस सुरुवातीला आमचा संघ स्वतः तयार झाला त्यावेळेला पदाधिकारी कमी होते, म्हणजे 2-3 महिला होत्या, त्याच्यामध्ये पण कोणी यायचं कोणी येत नव्हतं. तर त्या महिलांचा आत्मविश्वास वाढवून आम्ही त्यांना स्वतः त्या पदाचं काय महत्व आहे हे पटवून दिलं. मग पदाधिकाऱ्यांची संख्या वाढत गेली. आता आमच्या सध्या पदाधिकाऱ्यांची संख्या 20 वर गेलेली आहे. तर सध्या 350 गटांसोबत आमचं काम चालू आहे. तर ते 20 पदाधिकारी जे आहेत आमचे ते स्वतःच्या गावाचं नेतृत्व करतात, स्वतः महिलांना मार्गदर्शन करतात. आमच्या गटातल्या ज्या महिला आहेत तर त्या महिला स्वतःचा हिशोब करतात, स्वतःची मीटिंग घेतात, स्वतः गटाचे रेकॉर्ड लिहितात. आमचे स्टाफ महिलांपर्यंत पोहोचतात, त्यांना फक्त मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी स्टाफची असते. त्यानंतर जे ऑडिट आहेत, त्यानंतर विभागाच्या सभा आहेत, त्यानंतर वार्षिक सभा आहेत संघाची, विभागाची, गटाची, या महिला स्वतः सगळ्या कार्यक्रमाचं आयोजन करतात. त्यानंतर आता सध्या आमचा संघ पूर्ण सगळा खर्च जो स्टाफवर होणारा खर्च आहे, पदाधिकाऱ्यांवर होणारा खर्च आहे किंवा इतर जे सामाजिक कार्यक्रम आम्ही संघाच्या माध्यमातून घेतो त्याच्यावर जो खर्च होतो तो सगळा खर्च आमच्या संघाच्या महिलांच्या जो जमा केलेला निधी आहे त्याच्यामध्ये शेअर्स, बचत वगैरे आम्ही जे जमा करतो तर त्याच्या अंतर्गतच आम्ही तो खर्च केला जातो. आम्हाला कुठूनही बाहेरून सपोर्ट नाही. जसं मगाशी मीरा दिदी म्हणत होत्या की बँकेने असं करायला पाहिजे, बँकेने तसं करायला पाहिजे, तर माझं असं म्हणणं आहे सगळ्यांना की बँकेच्या भरोशावर राहण्यापेक्षा जर स्वतःच महिलांनी स्वतःची बँक जर तयार केली तर त्याच्यामध्ये खूप आपलं म्हणजे स्वतःच त्याच्यावर कंट्रोल राहील. बँकेने हे करायचं, बँकेने ते करणं, नाबार्डच्या सरांनी सही करायची, बँकेमध्ये जाऊन कागदपत्रांची पूर्तता करायची, 100 तिथे हेलपट्टे घालायचे. त्याच्यापेक्षाही आपण जर स्वतः महिलांची संस्था तयार केली, बँक तयार केली तर महिलांना आधीच सपोर्ट आपल्याकडून मिळू शकतो. तर अशा प्रकारे आम्ही आता संघ चालवत आहे आणि आमचं आता पुढे स्वप्न आहे की आता सध्या आमच्या म्हणजे जुन्नर संघाचं ऑफिस झालेलं आहे स्वतःच, उन्होंने खुद का ऑफिस लिया है खुद के बलबूते पे, और हमारा जो मंचर का संघ है वो भी अभी ऑफिस लेने के लिए जगह दिख रहा है. तो हमारा दोनों फेडरेशन का जो यहाँ पे आए हैं दोनों फेडरेशन का खुद का ऑफिस है मतलब. और जो महिलाएं कर्जा लेती है तो 1 लाख तक हम उनको कर्जा देते हैं. जो कर्जा लेके व्यवसाय करती है, कोई गाय पालता है, कोई भैंस पालता है. जो अभी दीदी ने बोला कि 50,000 में भैंस नहीं आती, तो 1 लाख में हमारे यहाँ जो जर्सी गाय होती है उनके बलबूते पे दूध का व्यवसाय करके और उनको आगे का भी ट्रेनिंग हमने दिया है. जैसे दूध से कौन से पदार्थ बना सकते हो, कैसे बेच सकते हैं, मसाले कैसे बना सकते हैं, वो कैसे बेच सकते हैं. और जो एसओसी की जो प्रक्रिया थी अभी पिछले 3-4 साल में रही होगी, हम भी आए थे यहाँ एपीमास में ट्रेनिंग के लिए. थैंक यू. आपका 3 मिनट हो गया. ठीक है. बहुत बहुत धन्यवाद. आई थिंक आई विल समराइज. आप भी ऐड कीजिए सुधा जी, फाइल समथिंग बिकॉज आई नो लिटिल बिट ऑफ मराठी आल्सो. ये दीदी ने बहुत अच्छा बात बताया. उन्होंने बताया कि अपना हम विदाउट बैंक या बाकी लोगों के बिना मदद से हम अपने आप में कर रहे हैं. उनका खुद का ऑफिस भी है, खुद का सिस्टम्स है. उन्होंने बोला है कि शेयर कैपिटल भी डालते हैं, एजीपीए भी करते हैं, ऑडिट भी करते हैं. तो ऐसा उन्होंने अपने आपस में सभी महिला मिलकर उनका खुद का स्टाफ डाल के वो संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं. सुधा, यू वांट टू ऐड प्लीज. यानी वही कह रहे कि अगर ज्यादा विस्तार हो, समूह की संख्या पहले कम थी 70-80, अभी 350, तो ज्यादा सदस्य हो, ज्यादा पदाधिकारी, ऑफिस बेरर जो है जो खुद जिम्मेदारी ले और अपने अपने एरिया में मार्गदर्शन करें, तो ज्यादा ऑफिस बेरर भी है. और उसके साथ जो है मुझे लगा बाकी तो आपने बता दिया है कि और अभी प्रक्रिया उपयोग में वो भी अभी उसके लिए भी संघ ऋण दे रहा है.
और स्वनियंत्रण की प्रक्रिया जो यहाँ पे आके काफी लोग यहाँ पे आए थे एपी मार्च में, उसका भी उपयोग करता है समूह के स्तर पे, वीओ के स्तर पे और संघ के स्तर पे एजीएम्स जो है वो भी सब महिलाएं ऑर्गेनाइज कर सकती खुद की। थैंक यू सुधा जी। अभी हम आई थिंक आई रिक्वेस्ट शैलेंद्र सर आल्सो टू से some initial words, but I was thinking that given that we have just an hour, so each of us will get about 5 minutes kind of round. Then we'll take some questions. Then I think we will respond to those questions. That format will be better. Maybe just half an hour we can all each of us can finish 5 minutes. So I just request you, sir. Yeah, that's fine. Yeah, thanks, Narayan. So good morning, all of you. Yeah, because at the outset, because I'm thankful to CSN team for giving me this opportunity. I'm very happy to be participating and being in this middle of this wonderful crowd. Because I missed the proceedings yesterday, that was the last, but I hope to catch up with today's proceedings. Right, of course, we are all here to celebrate the 3 decades of this SHG movement. Because we are also here to reflect as to how do we take it forward. Yeah. So CS is reminding me that I should speak in Hindi. Yeah, because that is the problem. Neither I know Hindi nor any other than my mother tongue. Little bit of English, or even English is also not good. But whatever Hindi I will speak. Right? Yeah. हम लोग एसएचजी मूवमेंट का सेलिब्रेशन के लिए इधर हम इकट्ठा हुए हैं और आगे हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी सोचने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए भी हम इधर इकट्ठा हुए हैं। तो मैं एपी मार्च और जो भी इसमें जो रोल निभाया है उसको ऑर्गेनाइज करने में, तो सब लोगों को मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ। तो एसएचजी मूवमेंट मैं कैसे देखता हूँ, तो मैं भी एक इसका कुछ पार्टिसिपेंट हूँ, मैं भी एसएचजी प्रमोट किया हूँ। तो बहुत पहले एक एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट में मैं बेसिकली टीचर हूँ, टीचर और रिसर्चर। तो फॉर द लास्ट 25 ईयर्स, 25 साल से मैं टीचिंग करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ और रिसर्च भी करता हूँ। तो ये मूवमेंट को मैं कैसे देखता हूँ एज ए स्टूडेंट, तो ये अगर हम देखें ये मूवमेंट, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू हुए उसके साथ एसएचजी मूवमेंट भी एक तरीके से शुरू हुआ है। तो in a way it has come as a human face of this economic reforms. So how do I see the achievement? Of course there are several achievements. SHGs जैसे आज मीरा जी बोल रही उस तरीके का बहुत सारे असर हुआ है। तो ओवरऑल of course given their limitations, SHGs का बहुत सारे limitations भी है, फिर भी SHGs अपना जो रोल है, अपना जो स्ट्रेंथ है वो दिखाया है कम से कम 3 तरीके से। एक तो महिलाओं के लिए एक तरीके का प्रोटेक्शन दिए है, जितना जो डिसएडवांटेजेस उनके साथ है उसको निभाने के लिए एक तरीके से प्रोटेक्शन दिए है। दूसरा, जितना हो सकता है उतना अपना जो लाइवलीहुड है उसको आगे ले जाने के लिए मदद की है। तीसरा है सामाजिक तरीके से, socially SHGs have played a great role in terms of inclusion, emancipation and empowerment. These are the 3 major roles of SHGs I see, right? And of course, as a student, theoretically, I would wish that in the last 3 decades, so SHGs came as a human face to overcome the limitations of economic reforms and help poor and women get access. Theoretically, in 3 decades, they should have disappeared. They are informal institutions.
right? When we are formalizing the economy, saying that economy will become more organized, right, through reforms and such things, and we build this informal sector, and it has grown, it is thriving after 3 decades. So theoretically, it should have disappeared. It has not disappeared. Of course, that does not mean that I would say that it is a failure. In a way, it is the failure of the system to absorb these women, integrate these women, mainstream these women and the poor. And the mainstream has failed to, the so-called mainstream has failed to do this. So therefore, just as 3 decades back there was need, even now there is such need. Because women and the poor continue to face several disadvantages. So therefore, though theoretically SHG should have disappeared, but their relevance remains. So therefore, we take note of that and we take them forward. So therefore, we need to build their strengths, and of course, SHGs themselves have shown, but we need to bring in all the newer innovations, methods, etc., so that we reduce the burden of women, but they still run the SHGs and manage them well and retain their strengths as informal institutions. Of course, the emergence of federation is a very positive thing, right? Of course, any such movement which grows horizontally, right, ultimately has to organically also has to grow, and the growth of federation in that sense is a very, very positive thing. And of course, that is the topic for today's session, as to how do we make these federations, which are the next level of achievement of this movement, become more autonomous, more relevant, right? Of course, that is an important topic. It is a topic for, of course, for all collectives, right? They are collectives, cooperatives, right? And for all cooperatives, one of the essential characteristics is autonomy and independence. And of course, if after 200 years of cooperative movement globally, if you still are emphasizing, there is some problem in our policy and perspective on cooperatives, right? So therefore, policies must change. They must respect these cooperatives legally, socially, economically, and even in terms of the business and the transactions. The kind of ideas Meeraji was sharing here, and that should happen. And of course, so therefore, in every sense, so therefore, we must recognize and make them become autonomous and enable these women to take these instruments in their hands and overcome various disadvantages. I know that it is not that easy, but they have shown the potential, and possibly the SHG federations now can emerge as maybe as alternative systems. Bankers, in my view, bankers still remain bankers. They have, of course, shown certain proactiveness, but I don't think, in my personal view, they have shown the required. The women have proven their abilities, their creditworthiness, their trustworthiness, but still bankers are still bankers, I would say. They still have to therefore change. We need therefore newer trainings, newer orientation for the banks. We did that for SHGs, we must do that for federations, right? And those are some of the thoughts. I know that there are many speakers, time is a constraint. So therefore, I again compliment all people who have made this SHG movement possible. Civil society, government agencies, bankers, and several such people. There is a bonus on all the stakeholders now, right, to ensure that this moves forward in the right and the positive direction, and probably this is the occasion. We must take a resolve and decide on all these aspects which are crucial, right? So with those few words, because I know time is a constraint, I now possibly request my colleague Narendra to say a few words, and then I will proceed. Thank you all. Yes, sir. थोड़ा मैं सर का जो भी है सब इंग्लिश में बोल रहा था, थोड़ा मैं बता देता हूँ. सर एक्चुअली पहले बोल रहा था कि लाइक हम SHG सोचा है कि SHG शुरू किया तो ये SHG थोड़ा दिन के बाद बंद हो जाएंगे, मगर अभी SHG ऐसा उभर के आ रहा है कि एक संस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है. मगर अभी भी कोऑपरेटिव्स में ये इश्यू है कि एक SHG अपने स्वतंत्रता से नियंत्रण करने का अभी भी मुश्किल हो रहा है. तो उसमें जो चर्चा अभी हम कर रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है. और इसके लिए
रणनीति गवर्नमेंट का भी पॉलिसीज में बदलाव आना चाहिए, लीगल की हो या सामाजिक की हो या आर्थिक स्थिति के समझ में बदलाव लाना है। और तीसरा चीज उन्होंने बताया कि बैंकों से वे बहुत उम्मीद कर रहे हैं, मगर बैंक के ही रहेगा, तो आपको अपना फेडरेशन को एक बैंकिंग ग्रुप में आपको आगे बढ़ना होगा, ताकि आप अपने आपस में एक सुस्थिर बैंकिंग सर्विसेज आपका महिलाओं को दे सकते हैं। तो ये चीज सर ने थोड़ा हाईलाइट किया है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अदर पैनलिस्ट आल्सो टू बी लिटिल मोर फोकस्ड ऑन दिस थीम itself. There is a guidance, like, especially as the promoters of federations, how do we really sustain, and what has been our experience so far? Like many of us, हम सारे बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत साल से काम कर रहे हैं, तो ये फेडरेशंस को बहुत जगह में फेडरेशंस अपने आप में चल रहा है, बहुत जगह में नहीं चल रहा है। तो नहीं चलने का क्या वजह है, चलने का भी क्या वजह है, और कैसा इस फेडरेशन को हम एक सुस्थिर में चलाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस किए तो अच्छा रहेगा। और अपना पॉलिसीज अभी गवर्नमेंट को क्या सिफारिश हम दे सकते हैं ताकि ये फेडरेशन को मजबूत रख सकते हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुधा जी, आप शुरू कीजिए थोड़ा 5 मिनट्स का टाइम पे। आपका फर्स्ट राउंड में यू कैन गो सेकंड राउंड आल्सो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यहाँ मौजूद जो शक्ति है उसको प्रणाम कि बहुत यानी सालों से काम करते हुए ऐसे प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, अलग अलग क्षेत्र के हैं। और मैं जो बात करने जा रही हूँ, मुझे लगता है आप लोगों के भी अपने अनुभव उससे मिलते जुलते रहेंगे। मैं कहूँ कि इस पूरे प्रक्रिया में एक जो वातावरण होता है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कि चैतन्य की शुरुआत में जिन अनुभवों के साथ, यानी हमने तब पीसीटी समाख्या है, फिर तब का समाख्या CDL, फिर जो है मायरा आधार फाउंडेशन, अलग अलग, और FWW ने कुछ वर्कशॉप्स भी दिए थे। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये सब एक एनवायरनमेंट तैयार होता है। जैसे कि अभी मीरा दीदी बोली कि उनको एक, वैसे संस्थाओं को भी एक एनवायरनमेंट जो मिलता है वो एक महत्वपूर्ण होता है। 80 मार्क्स के यानी अलग अलग स्टेज पे अलग अलग संस्थाओं के साथ जो अनुभव, और नेटवर्क्स में जैसे कि एनेबल नेटवर्क, मैं कहूँगी एक महत्वपूर्ण सीखने का मौका संस्थाओं को जो मिलता है वो एक है। दूसरा है महिलाओं के साथ जब काम करते समय महिलाओं की खुद की शक्ति जो है, यानी उस परिप्रेक्ष्य में क्या किया जाए, अलग अलग जगह पे किया, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में क्या करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ रेखा दे बैठे हुए हैं, यानी कौशल दे, हम थोड़ी बात करूंगी ताकि वो सस्टेनेबिलिटी में कैसे अफेक्ट करता है कि एक स्थानिक महिला भी, यानी जैसे रेखा दे थे, हमने जब यानी पहले फेडरेशन के पहले अध्यक्ष हैं और फिर अलग अलग अध्यक्ष आ गया है, लेकिन आज वो जब अलग अलग फेडरेशन की मीटिंग में जाते हैं जिस तरह से, तो मुझे लगता है ऐसे लीडर्स जो खड़े हुए, मीरा बहन आज हमने सबने सुना, ऐसे मुझे एक विश्वास है कि यहाँ सब लीडर्स ही हैं जो अपने शायद यहाँ बोल नहीं पाए हो, मगर लीडर्स हैं और वो उन्होंने जो भूमिका अदा की वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उसकी बाजू में बैठे कौशल बताए गए, वो एक समूह की सदस्य थी, और अभी संघ का संघ जो है सारथी ग्रामीण महिला स्वयं संघ, जो फेडरेशन को जो जरूरत है कॉमन, जो मीरा देवी कह रही थी कि आज क्या क्या जरूरत है कि ऑडिट प्रोसेस ऑडिट हो रहा है, फिर उनका MIS कैसे है, सॉफ्टवेयर की जो बात की, और मुझे उसमें से कुछ आइडिया जैसे लगे कि क्या सॉफ्टवेयर जैसे फेडरेशन इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर आज है कौन, कैसे एक्सेस करते हैं। मैं खुशी से कहूँगी कि अभी 2 दिन पहले ही चैतन्य ने जो सॉफ्टवेयर विकसित किया वो अभी मावन ने अग्रीमेंट किया है कि 250 फेडरेशन के लिए वो यूज करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम अलग अलग जगह पे ये सॉफ्टवेयर इकट्ठा यूज करें तो फिर और उपयोग हो सकता है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है। मैं ये कहूँगी कि मुझे अभी ये पिछले 3 साल से हम यहाँ पे कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जब FWW ने किया था, ऐसे मौके जहाँ महिला इकट्ठा आ सके, क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि ऐसे महिलाओं को कुछ फेलोशिप्स मिल सके और वो भी मूवमेंट को आगे लेने के लिए
बहुत है मुझे लगता है, क्योंकि ये जो एनर्जी है खुद किया है और वो दूसरों तक जा सकते, तो ऐसे महिलाओं के लिए आप सहमत हो इससे? हाँ हाँ सहमत हो ना? मुझे 2-3 हाथ दिख रहे कि ऐसे महिला जो आगे बढ़ रही है वो दूसरों तक ये पहुंचाए, सिर्फ अपने ही फेडरेशन में नहीं, औरों तक जाए। और उसके लिए ये मौका, कई बार जो होता है अनुभव होता है, मगर वो अनुभव हम व्यक्त कैसे करें, उनके लिए क्या पॉइंट एलिमेंट है। तो इसलिए ऐसे महिलाओं के साथ अगर हम एक प्रोग्राम आगे ले जाएंगे, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि ऐसी महिलाओं का अभी मैं यहाँ रुकूंगी, फिर सेकंड राउंड में। థ్యాంక్ యూ సుధాకాయ్. నేను తెలుగులో సుధాకాయ్ చెప్పి కొంచెం చెప్తాను. తను ఏమంటున్నారంటే మనకి ఇలాంటి అవకాశాలు ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే మనం అందరం కలిసి ఒక దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటున్నామో, అలాగా ఫస్ట్ తను సంస్థ పెట్టి సంస్థ ఫెడరేషన్ చేసినప్పుడు కూడా ఒక లీడర్ ఇంకొకటి నుంచి నేర్చుకోవడము, ట్రైనింగ్స్ FWW వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఇలాగా అలాంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది అంటే మనకు ఒక అవకాశం, వేదిక కావాలి అని చెప్పారు. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ ఇప్పుడు వారు కూడా కొన్ని ఫెడరేషన్ కలిసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇస్తున్నారట. అలాగే మనం కూడా మన మధ్యలో ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవడానికి ఏ విధంగా మనం సాఫ్ట్వేర్ లాంటివి కావచ్చు, సిస్టమ్స్ కావచ్చు చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏం చెప్పారంటే ముఖ్యంగా ఫెలోషిప్స్, అంటే ఇలాంటి మహిళలకి కొంత సపోర్ట్ ఇస్తే వాళ్ళు వెళ్ళి ఇంకా మిగతా మహిళలకు కూడా ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వచ్చు. ఆ విధంగా మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి బాగుంటుందని కొన్ని ఆలోచనలు షేర్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సుధాజీ. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ Reddy garu to share your thoughts. Yeah, Kaushik, maybe you. No, I think presentation इसलिए मैं नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत स्ट्रैटेजिक डिस्कशन है, तो बहुत रिलेट नहीं हो पाएगा. तो ऑपरेशन मोटा मोटा. तो थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू रेड्डी जी. मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा रिलेट करना चाह रहा हूँ कि मैं जो संस्था से आया हूँ TRS करके, तो इसके प्रमोटर जो है लगभग 2 डिकेड्स तक प्रधान में काम करने के बाद उनको ये एक्सपीरियंस हुआ, जैसे मैं मीरा जी का भी रेफरेंस लेना चाह रहा हूँ कि उन्होंने भी जैसे बताया कि कम्युनिटी जो हमारे ग्राउंड लेवल पे जो दीदियाँ काम कर रही हैं, उनकी एक लंबा चैलेंज वो जो फेस करते हो पॉलिसी लेवल पे फेस करते कि सरकार से अगर कुछ इस तरह से कोई गाइडलाइंस हो या इस तरह से कोई सहायता हो या मार्केट रिलेटेड, अगर सारी दीदी अगर आजीविका संबंधित कार्य में अगर स्वयं मतलब सस्टेनेबल हो जाए या लाइवलीहुड उनकी जो आजीविका है वो अच्छी तरीके से कर पाए, तो कहीं ना कहीं बाजार का बहुत बड़ा रोल है. तो इन तीनों एस्पेक्ट को समझते हुए हम लोग ने 2016 साल में ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है, जिसकी फिलोसॉफी यही है कि हम समाज के साथ भी काम करेंगे, साथ ही साथ सरकार के साथ जुड़ के और मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए काम करेंगे. तो तीनों अगर पिलर एक साथ काम करेंगे तो हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है लगभग 1 लाख पिछड़ा हुआ जो पूरे भारत के गांव है वहां तक पहुंच पाएंगे और पॉवर्टी को हम कहीं न कहीं मिटा पाएंगे. इस संदर्भ में हम लोगों ने यूपी SRO उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ एक हमारा MOU साइन होता है लगभग 3 साल पहले, जहां पे हम लोग को यही रियलाइज हुआ कि कम्युनिटी लेवल पे तो मिशन का काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पर कहीं ना कहीं कैपेसिटी बिल्डिंग जो क्षमता वर्धन की बात हम करते हैं, वो क्षमता वर्धन में हर लेवल पे बहुत ज्यादा कमी है. जैसे कि अगर हमारे यूपी की हम बात करें तो यूपी में एक हाइब्रिड मॉडल है, मतलब एक जो लीडरशिप जो मैकेनिज्म है वो हमारे सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, बट जो हमारे ड्राइव करते हैं हमारे पूरे सिस्टम को, ऑपरेशन को, जो धरातल में जो काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल्स है जो हमारे दीदियों के साथ काम कर रहे हैं. तो ये रियलाइज हुआ कि अगर हम हमारे लीडरशिप की अगर क्षमता वर्धन ना करें, उनको अगर हम प्रॉपरली कैपेसिटी बिल्डिंग ना करें, साथ ही साथ दीदियों का भी कैपेसिटी बिल्डिंग या क्षमता वर्धन काम करने की बहुत जरूरत है. तो इसीलिए हमारे पोजीशन में ऐसी जगह हुई कि हमने ये वहां पे एश्योर किया कि हम लगभग 78 ब्लॉक में हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे दीदियों के साथ डायरेक्टली, जहां पे हम ये दिखा पाए कि समाज के साथ, सरकार के साथ और बाजार के साथ कैसे हम इकट्ठे काम करते हुए एक डेवलपमेंट कर पाए. जब ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हम लोगों ने फेस किया वो है कि जो उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि हम क्या है, हमारे क्या अधिकार है, हम क्या कर सकते हैं. मैं हर लेवल की बात कर रहा हूँ, समाज की बात कर रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ. मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारी जो दीदी की जो संस्थाएं हैं, अगर मैं SHG बोलूँ, BO बोलूँ, CLA बोलूँ, ये बच्चे की तरह है.
मतलब दीदियों ने ये रियलाइज किया कि हमको एक संगठन बनाना है। तो संगठन मतलब हो गया बच्चा पैदा हुआ है, जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। तो जो हमारी इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करने के लिए जो हमारे मैकेनिज्म है, जो इकोसिस्टम है, जो हमारे प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, हमारे जो लीडरशिप काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा केयर करना उन्होंने किया। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो केयरिंग से आपको हैंड होल्डिंग में जाना पड़ता है कि हम अब उसको हाथ पकड़ के चलाए जहां जरूरत है, पर जहां जरूरत नहीं उसको छोड़ दे, गिरना भी चाहिए फिर उठाए। तीसरा है बच्चा जब बड़ा हो जाए तब हमारा लोग बिल्कुल एडवाइजर और मेंटर की तरह होना चाहिए कि हम उसको हाथ पकड़ के, हम उसको सही दिशा निर्देश देंगे। डिसीजन हमारी संस्थाएं लेंगे, डीडीओ की संस्थाएं। यहां भी बहुत बड़ा एक गैप हम लोगों को फील हुआ कि जब आप प्रमोट करने जाते हो तो बहुत ज्यादा आपको ओनरशिप क्रिएट हो जाता है। आप ही सब सोचते हो कि यही मेरी संस्था है, हम जैसे कहेंगे वैसे चलना है। यहीं पे बहुत बड़ा इश्यू हमने क्लियर किया कि दीदी का जो डिसीजन मेकिंग पावर है या जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा कम हो गई, क्योंकि उनको ये बताया गया कि ये हमारी संस्था है, हम जैसे चाहेंगे आपको ऐसे चलना है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझ में आया कि जब तक हम लीडरशिप की या हमारे प्रोफेशनल की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे कि ये डिफरेंट संस्था है, आप एक प्रोमोटर एजेंसी हो और ये एक हमारी डिफरेंट लीगल बॉडी है, जो हमारी डीडीओ की क्लस्टर लेवल फेडरेशन डीओ या एसएजी है, उनकी अलग मैंडेट है और आपको किस तरह से उसको नर्चर करना है, किस तरह से गाइड करना, वो आपकी रोल होनी चाहिए, ना कि आप उसको हाथ पकड़ के ले जाओ, उसकी डिसीजन में इन्वॉल्व हो। दीदियों को भी फिर नेक्स्ट लेवल पे बताना पड़ेगा, दीदी आप स्वयं स्वतंत्र हो कि क्या डिसीजन आपको लेना है, कैसे आपको लीडरशिप चुनाव करना है, कैसे आपको ऑपरेशन करना है। जब ये डिसीजन मेकिंग में उनकी जब क्लैरिटी हुई तब बहुत बड़ा एक हम बदलाव देखना शुरू किए। जैसे अभी यूपी का मैं आपको तो पहली बार यूपी के हिस्ट्री में एक हमारे सीएलएफ इस बार अवार्ड फंक्शन में अवार्ड जीती है और देश के टॉप 7 जो सीएलएफ है निर्मा द्वारा जिसकी स्टडी हुई थी रिसेंटली, उसमें एक सीएलएफ हमारे बनारस की भी है, जो विच इज अ वेरी चेंज मेकिंग सिचुएशन। तो जब हमको स्वतंत्र बताने की जरूरत पड़ेगी तो ये जरूर बताना पड़ेगा कि दीदी किस तरह से स्वतंत्र हो सकते हैं। तो लीडरशिप की बहुत बड़ा क्लैरिटी जरूरत है। हमने इसको 3 हिस्से में डिवाइड करके रखा है। हम गवर्नेंस की बात करते हैं कि शासन व्यवस्था क्या होनी चाहिए कोई भी संस्था में, अगर दीदी की संस्था भी है। ऑपरेशन क्या है, मतलब जो हमारे कैडर काम कर रहे हैं वही संस्था में, उनमें और लीडरशिप में क्या अंतर है। और तीसरा मेंबर ओन ऑर्गेनाइजेशन है तो मेंबर की क्लैरिटी है। ये क्लैरिटी जब आना शुरू हुआ तब उनको पता चला कि हमें क्या करना है। तो हमने इसको मोटा मोटा बस मैं थोड़ा शॉर्ट में बस बता दे रहा हूं, 5 इंपॉर्टेंट हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। सबसे पहला ये है कि आपकी गवर्नेंस को किस तरह से बेहतर करना है, दीदी का क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लीडरशिप क्या होंगे, लीडरशिप का रोटेशन क्या होना चाहिए, लीडरशिप में बाइलॉज के बारे में अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे बारे में उनकी ट्रेनिंग करना और धीरे धीरे ये सारे चेंजेस को इंश्योर करना। सेकेंड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे सीएलएफ जो बने हुए हैं लाइफली फाइनेंशियल इंप्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब वित्तीय लेन देन करते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है और सही तरह से उसको चलाना। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लीगल कंप्लायंस, इसके बारे में बिल्कुल किसी की क्लैरिटी नहीं थी, मिशन की भी नहीं थी, डीडीओ की भी नहीं थी। बट सारे सीएलएफ हमारे सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो ये जब रजिस्टर्ड है तो उनकी जो अथॉरिटी है उनपे जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल नहीं था। तो ये जो 3 सिस्टम है, ये इसको जब हमने क्लियरली डिमांड किया तो चीजें चलना, ऑटोनॉमी जो हम कह रहे हैं सेल्फ ड्रिवन, वो होना शुरू हो गया और सारी चीजों को हमने बेसिकली डिजिटाइज कर दिया। आज के दिन में जो जैसे सुधा दीदी भी बता रही थी कि जिस तरह से उन्होंने डिजिटाइज किया, हमने पूरे कैडर के सीएलएफ की वेल्थ मतलब जो हेल्थ है पूरे सिस्टम को हमने डिजिटाइज मैकेनिज्म करते हैं, जो सीएलएफ खुद रिव्यू करती है, उसके ऊपर खुद डिसीजन लेते हैं। थैंक यू। థ్యాంక్ యూ కౌశిక్ జీ, आपने बहुत अच्छा पॉइंट्स को टच किया है। కౌశిక్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు చెప్పారు. అంటే ఒక స్వతంత్రంగా సంస్థని నడపాలి అంటే నాయకత్వానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. అంటే నాయకుడు లీడర్ కావచ్చు, సిబ్బంది కావచ్చు, నాయకత్వ లక్షణాలు ఉండాలా. తర్వాత సంస్థకు వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కూడా చేయాలి. అందులో అతను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రమోట్ చేసే సంస్థలు అంటే గవర్నమెంట్ కావచ్చు, ఎన్జిఓస్ కావచ్చు, ఈ ప్రమోట్ చేసే సంస్థలకు చాలా స్పష్టత ఉండాలి. అంటే ఈ సంస్థని మనము చాలా సార్లు ఏమవుతుందంటే ప్రమోట్ చేసిన సంస్థలు చాలా ఓనర్షిప్ ఎక్కువ తీసేసుకొని వాళ్ళే కంట్రోల్ చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వ సంస్థలు కూడా వచ్చిన సమస్య అదే కదా, సంఘాలు చేస్తారు, ఫెడరేషన్ చేస్తారు, కానీ కంట్రోల్ అంతా వాళ్ళ చేతిలో పెట్టుకుంటారు. ఆ విధంగా కాకుండా
ప్రజలకి అంటే ముఖ్యంగా మార్నింగ్ చెప్పినట్టుగా కామారెడ్డి వాళ్ళు స్వయం నియంత్రణ మేమేమే చేసుకునేలాగా అలాంటిది చేయాలి అంటే ప్రమోటర్ కూడా క్లారిటీ ఉండాలా, మన లీడర్లు మెంబర్లు కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి, తీసుకొని బాధ్యత తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే రేపు మీకు చేతిలో ఇచ్చాక తీసుకెళ్ళకుండా కష్టం అవుతుంది కదా. ఆ పాయింట్ చాలా చక్కగా చెప్పారు. కానీ ఏమన్నారంటే ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం లో మనం మెల్లమెల్లగా కొంచెం చేతి వదిలిపెడుతూ పిల్లవాడు నడిస్తే పిల్లవాడు సొంతంగా నడిచేలాగా పిల్లవాడిని వదిలేయాలని చెప్పారు. దాంట్లో 3-4 అంశాలు చెప్పారు. ఒకటి ఏంటంటే గవర్నెన్స్. గవర్నెన్స్ అంటే మన యొక్క దిశానిర్దేశం, సంస్థకి ఎవరు దిశానిర్దేశం చేయాలి అంటే నాయకులు దిశానిర్దేశం చేయాలి. అంటే ఎన్నుకోబడినటువంటి లీడర్, మీ సంఘ లీడర్ కావచ్చు, క్లస్టర్ లీడర్ కావచ్చు, ఫెడరేషన్ లీడర్ కావచ్చు, అంటే సంస్థ యొక్క నియమాలను మీరు చేయాలి. సంస్థ ఏ విధంగా నడవాలి, సంస్థ యొక్క సిద్ధాంతాలు ఎలా ఉండాలి, లక్ష్యాలు ఎలా ఉండాలి. కానీ దానికి తోడుగా మేనేజ్మెంట్ అంటే సంస్థలో పనిచేసే సిబ్బంది వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉండాలి, వాళ్ళ యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చెప్పారు. దాని ముఖ్యంగా ఫైనాన్షియల్, ఎందుకంటే చాలా ఫెడరేషన్స్ కూడా డబ్బుల్ని రొటేట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, ఫైనాన్షియల్ ఆడిటింగ్ ఇలాంటివన్నీ చాలా ప్రాముఖ్యం. అందులో లాస్ట్ పాయింట్ చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే లీగల్ కంప్లైంట్స్. అంటే మన ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి కొన్ని చట్టానికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు మనం పాటించాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఒక సొసైటీలో రిజిస్టర్ చేశాము, లేకపోతే ఒక కోఆపరేటివ్ గా రిజిస్టర్ చేశాము, అలాంటప్పుడు అలాంటివి మనం పాటించకపోతే ఆ విధమైనటువంటి మన సంస్థ మీద కూడా కొంత ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఇలాంటి అంశాలన్నీ గమనించి ముందుకెళ్ళినట్లయితే తప్పకుండా మనం స్వయం ప్రతిపత్తిగా నిలవగలుగుతాము. లాస్ట్ గా చెప్పింది ఏంటంటే ఈవెన్ కంప్యూటరైజేషన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత సుధా గారు కూడా చెప్పారు, లీలా గారు చెప్పారు, వీళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు. అంటే మీ యొక్క పద్ధతులన్నింటి కూడా కంప్యూటరీకరణ చేసినట్టయితే ఇంకా బాగా జరుగుతుందని చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కౌశిక్. Now I request Ritesh to take his views. Thank you. Respected dignitaries on the rise. We are representing जीविका. जीविका के परिचय मैं हमेशा दे देता हूँ because we are having more than 10 lakh of SDGs over there. जो अभी का संदर्भ है जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें 2-3 संदर्भ मैं जोड़ना चाहूँगा. एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो दीदियाँ अभी स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में कार्य कर रही हैं और जो जर्नी उन्होंने तय किया है उसके अनुभव और उसके नॉलेज को रिटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है हमारा कि हम स्वयं सहायता समूह के अंदर में और इस पर विश्वास ही हमारी ताकत है. तो ये बेस होगा हमारा जिसके तहत हम लोग मूव करेंगे. दूसरा जो वजह दिखाई दे रहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव मॉडल्स हैं हमारे 3 टियर सिस्टम्स के SHGs, BO एंड CLS, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं उसमें सिलेक्टिव लीडर्स ऊपर आ पाते हैं, जिन्हें ज्यादा स्पेस मिल पाता है कि वो रिप्रेजेंट करे, शायद अपनी बात रख पाए. और जो दीदियां हैं जो बॉटम लेवल पर हैं जहाँ की 70% की लेवल में सदस्यता होगी उन्हें शायद स्पेस कम मिल पाए. वी नीड टू क्रिएट अ स्पेस फॉर देम एज वेल. तो ये कैसे लीडर्स जो कि बोर्ड हमारे हैं फेडरेशंस के, हमारे सदस्य हैं जो नीचे स्तर पर, ये दोनों के बीच का जो लीडर मेंबर एक्सचेंज का सिस्टम होगा वो कैसे स्ट्रेंथन होगा. जिसमें कि हम लोगों ने आम सभा का एक उदाहरण लिया जिसमें हम लोग बात करते हैं हमारे सब कमिटीज हैं. वी आर हैविंग द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो RGB कहलाता है हमारा. तो कैसे हम RGB को स्ट्रेंथन करें, कैसे हम रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी RGB पे रखें, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें सो दैट की रिप्रेजेंटेशन इटसेल्फ इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम. क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, क्या एजेंडा आ रहा है नीचे की तरफ, क्या डिस्कशंस हो रहे हैं. एजेंडा सेटिंग इज इटसेल्फ ए बिग चैलेंज फॉर देम. हर चर्चाएं अगर एजेंडा होगी तो वो शायद दिक्कत है. कैसे एजेंडा फॉर्मुलेशन करना है दैट वेरी इंपॉर्टेंट. इसके साथ साथ 2-3-4 स्टेक होल्डर्स हैं जिसके इर्द गिर्द पूरे SDGs मूवमेंट की कहानी चलती है. वो है बैंक, दूसरा है पंचायत, तीसरा है सरकार की पॉलिसी और चौथा है हमारे प्रोमोटिंग इंस्टीट्यूशन. ये 4 स्टेक होल्डर्स के साथ साथ हमें ये भी तय करना है कि इनके रोल्स फंक्शंस को कैसे हम लोग यूज करें. प्रोमोटिंग इंस्टीट्यूशन एक समय तक हमारे रोल को लेंगे, उसके फर्दर हम लोग को कैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देना है. क्या बोर्ड ये तय कर सकता है कि कौन सा स्टाफ रहेगा, कौन सा स्टाफ नहीं रहेगा, कि कौन से इश्यूज पर हमें कार्य करनी है इस साल. ये सारे निर्णय बोर्ड खुद देता है. तो किन संदर्भों में हम डिपेंडेंट हैं प्रोमोटिंग इंस्टीट्यूशन पे, किन संदर्भों में हम डिपेंडेंट हैं बैंक पे, किन संदर्भों में हम डिपेंडेंट हैं पंचायत के साथ. ये सारी चीजें हमें जोड़ता है, हमारे फंक्शंस के गैप को दिखाता है. ये गैप अगर धीरे धीरे मिटिगेट करते हैं तो शायद हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा फंक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग.
तीसरा आयाम है जहाँ की लीगल आइडेंटिटी। बिहार के कंटेक्स्ट में तो हमारे पास मैक्स एक्ट की तरह बिहार सेल्फ सपोर्टिंग कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन एक्ट था, इसके तहत हम लोगों ने लगभग 400 CLS का निबंधन कर रखा है। बाकी स्टेट में भी हैं, वैसे 8-10 ऐसे स्टेट हैं जहाँ की मैक्स एक्ट के सिमिलर में कोऑपरेटिव एक्ट हैं, बिकॉज एसएचजीज के सारे प्रिंसिपल्स फंक्शंस कोऑपरेटिव से मैच करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन थिंक ऑफ कि हम कैसे जितनी जल्दी हो सके अपने फेडरेशंस को लीगल आइडेंटिटी दें, बिकॉज एक बार लीगल आइडेंटिटी आ गई तब हमारे बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे फंक्शंस में भी बढ़ोतरी होगी। और साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि जो स्पेस क्रिएशन का जो सिलसिला है वो इस लीगल आइडेंटिटी से जुड़ा है। एक बार हम अगर लीगल आइडेंटिटी देते हैं अपने फेडरेशंस को तो शायद बैंक से बात करने का तरीका बदल जाएगा। बैंक के बैठकों में अभी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम वहां रिप्रेजेंटेशन करेंगे। पंचायत में हमारे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम पंचायत में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए स्पेस नहीं है, वी कैन जस्ट क्रिएट बेस कि हम लीगल आइडेंटिटी हैं एंड वी आर आस्किंग आवर सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। देन 2-3 एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कि बिहार के कंटेक्स्ट में वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर हैविंग 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द पंचायत। तो ये प्रोविजंस है, वार्ड सभा के प्रोविजंस है वहां पर जहाँ की हम वाली महिलाएं वार्ड में शामिल होती हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में डिमांड जनरेशन का कार्य करती हैं। और अभी हम लोगों ने नया कमिटी से थ्रू पास भी कराया है कि एसएचजीज के मेंबर भी पीआरआई के स्टैंडिंग कमेटी में पार्ट लेंगे। तो इसके साथ 2-3 एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगा। एक है कि ह्यूमन रिसोर्स जो इन्वॉल्व है डे 1 से ऑटोनॉमी क्रिएट करने की फेडरेशन पे, वो जो साथ में फैसिलिटेट कर रहे हैं उनके भी स्किल्स को होनअप करना है, उन्हें भी अपस्किल करना है। बिकॉज जो प्रोफेशनल्स एज सच हैं, शायद आज की जनरेशन के प्रोफेशनल्स भी होंगे जो कि जिन्होंने एसएचजी मूवमेंट में शायद एसएचजी नहीं बनाया होगा लेकिन एसएचजी फेडरेशन के साथ कार्य कर रहे हैं, तो ये स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज द we need to create a base of decentralized MIS system जो कि डेटा बेस्ड एविडेंस बेस्ड हमारे पास डिजिटल के सपोर्ट सिस्टम बनेगा। and we should promote the women centric product and services। बिहार के कंटेक्स्ट में और आंध्रा कंटेक्स्ट में हम लोग ने देखा कि दीदी की रसोई इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत प्रचलित हुए हैं, जिसमें कि हम लोग ने देखा कि विमेन के पास स्किल सेट था कि वो अच्छा भोजन बना पाती। ये स्किल सेट को अगर हम बिजनेस एंटरप्राइज के रूप में स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ही सपोर्टिव रोल प्ले किया। सो वी जस्ट क्रिएट अ बेस ऑफ ह्यूज मैन पावर एंड that can support in creating the base of good autonomous district। Thank you। थैंक यू रितेश जी। मैं थोड़ा प्रेशराइज कर रहा हूँ बट सॉरी टाइम के देखते हुए या अभी जो बात की ना कैपेसिटी बिल्डिंग, नए लोग इसमें आ रहे हैं कार्यकर्ता के तौर पे और उनको अनुभव नहीं होता है कि कैसे एसएचजी फेडरेशन चलता है। तो मैं एक शेयर करना चाहती हूँ कि अभी चैतन्य ने अपने अनुभव से जो है एसएचजी फेडरेशन मैनेजमेंट का एक कोर्स टाटा इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइन भी किया और झारखंड में भी गवर्नमेंट के साथ 5वां राउंड चल रहा है। यानी ये अनुभव औरों तक पहुंचे इस दृष्टि से ये कोर्स। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। చుట్టంగా జగదీష్ గారు చెప్పిన ఈ పాయింట్స్ చెప్తాను నేను। వారు ఏం చెప్పారంటే ముఖ్యంగా మన నాయకులకి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి, సంస్థ స్వతంత్రంగా ప్రతిపత్తిగా నడవాలి అంటే ముఖ్యంగా నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నటువంటి మహిళలకి అవకాశం ఇవ్వాలి, ఎక్కువ మంది మహిళలు ఆ యొక్క అవకాశాన్ని తీసుకోవాలి, దానికోసం రొటేషన్ చేస్తూ ఉండాలి। అంటే ఒకరే బాధ్యత తీసుకోకుండా మిగతా వాళ్ళకి కూడా బాధ్యత ఇస్తూ రావాలి, నెంబర్ 1। రెండోది ఏంటంటే వివిధ సంస్థలతో కలిసి పనిచేయటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు సంస్థకు ఉన్నప్పుడే సంస్థ స్వయంగా నిలవగలుగుతుంది। అది బ్యాంకులు కావచ్చు, పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు కావచ్చు, ప్రభుత్వ సంస్థలు కావచ్చు। అలాంటి సంస్థలతో అలా చేయాలి అంటే వాళ్ళకి అంటే న్యాయపరంగా లీగల్ గా ఒక ప్రత్యేక సంస్థగా రిజిస్టర్ చేసుకున్నప్పుడు అది సాధ్యమవుతుంది। వారు చెప్పారు దాదాపుగా 400 ఫెడరేషన్స్ ని జీవికా వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు, ఒక కోఆపరేటివ్ యాక్ట్ లో రిజిస్టర్ చేశారు। ఈ రోజు ఆ కోఆపరేటివ్ సంస్థలు వాళ్ళే స్వయంగా బ్యాంక్ తో కావచ్చు, గవర్నమెంట్ తో కావచ్చు అగ్రిమెంట్స్ చేసుకొని వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా స్వయంగా నడుపుకోవడానికి వీలవుతుంది। తర్వాత వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే స్టాఫ్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బంది, ప్రతి సంస్థ కూడా వ్యక్తిగతంగా నడుపుకోవాలంటే చాలా నాణ్యమైన సిబ్బందిని కూడా పెట్టుకోవాలి, అలాంటి సిబ్బందికి కూడా తగినటువంటి శిక్షణ ఇవ్వాలి, అలా ఇచ్చినప్పుడే సంస్థ అనేది ఎదుగుతుంది। దాంతో పాటు వారు కూడా చెప్పారు కొన్ని పద్ధతులు అంటే సాఫ్ట్వేర్ కావచ్చు, ఎంఐఎస్ కావచ్చు, సిస్టమ్స్ మనకు ఉన్నటువంటి ఈ పద్ధతులు కూడా చక్కగా ఉండాలి।
లాస్ట్ పాయింట్ చెప్పింది ఏంటంటే ప్రోడక్ట్స్ అంటే మహిళల యొక్క అవసరాన్ని గుర్తించి, మార్నింగ్ కూడా మీరాబాయి గారు చెప్పారు, మీరాదేవి గారు చెప్పారు, అంటే హౌసింగ్ లోన్ అది ప్రజలకు చాలా అవసరం. అలాగా మహిళలకు ఏది అవసరం ఉంది, మహిళల యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి, లైక్ దీదీ కా రసోయి జీవిక వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. అలాగా మన యొక్క సంస్థలో, మన సంఘాల్లో మన యొక్క అవసరాలు ఏంటి అని గుర్తించి దానికి అనుగుణంగా మీ యొక్క సంస్థ నడుపుకున్నప్పుడు మీ సంస్థ ఇంకా స్వయం ప్రతిపత్తిగా వెలుగుతుందని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ రితేష్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ సిఎస్ రెడ్డి గారు టు షేర్ ఫ్యూ పాయింట్స్. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. सबको नमस्कार. हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश रावलेदा. So I guess we are switching over between three languages: Hindi, Telugu, English. But that's nice. We want the women to understand. सबको समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्रेंस हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं है. बट ये जो हमारा विषय है संस्थाओं का जो स्वयं प्रतिपत्ति या ऑटोनॉमी, ये संस्था खुद चलाना चाहिए. इसके बारे में मैं पहले एक उदाहरण बता के फिर मेरा 3-4 पॉइंट जोड़ता हूं. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में हम एपी मार्क संस्था 21 साल से काम कर रहे हैं और थैंक्स टू मेनी एडवोकेट्स, बहुत सारा लोग मेहनत किया कि हमारा 1995 में मैक्स एक्ट आया, म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. और इधर जो महिला आंध्र तेलंगाना का है सबको मालूम है, अभी रितेश भी उसका मेंशन किया. तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये लीगल फॉर्म उनको ऑटोनॉमी देता है. मतलब वो लोग उनका संस्था को खुद चला सकते हैं, उनका ऑडिटर खुद अपॉइंट कर सकते हैं, उनका इलेक्शन खुद कर सकते हैं, उनका बिजनेस रूल्स खुद बना सकते हैं, उनका रेटिंग खुद कर सकते हैं, उनका ट्रेनिंग खुद कर सकते हैं, उसका पूरा बिजनेस रूल्स खुद बना सकते हैं. बट द ट्रेजेडी इज दैट जो लीडर उनका ग्राम संगठन या क्लस्टर संगठन को बहुत बढ़िया चला रहा है, उसका कोई स्टाफ का पसंद नहीं है तो वो बदल जाते हैं. क्योंकि मतलब संस्था को लीगल फॉर्म ऑटोनॉमी देता है और वो अच्छा ऑटोनमसली वो खुद चलाते हैं. ఏది మన తెలుగులో స్లోగన్ కూడా చేశారు మన వాళ్ళు, సంఘాలు మనవి, సమాఖ్యలు మనవి, పాలనా మాదే, నియంత్రణ మనదే అని చేశారు. मतलब समूह हमारा, संगठन हमारा और उसका पालना भी हमारा होगा और नियंत्रण भी हमारा होगा खुद का. और आई थिंक बहुत सारा लोग कल से वही बता रहे हैं. मगर मैं ये इस मंच पे ये बोलना चाहता हूं कि बहुत सारा जो प्रमोटर्स है वो लोग ऑटोनॉमी को मानते नहीं. वो एनजीओ हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं, वो ये संस्थाओं को उनका पकड़ में रखना चाहते हैं. और जब तक उनका ये इरादा है, महिलाओं का संस्था खुद चलाना आसान नहीं है. और खासकर ये सरकारी सिस्टम में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सरकारी सिस्टम में कोई एक पर्सन नहीं होता, एक पूरा व्यवस्था होता है. ठीक है. और उससे राजनीति जुड़े हैं, उससे करप्शन जुड़े हैं. तो हम जहां करप्ट, और मैं ये बताना चाहता हूं लगभग 20 देशों में मैं ट्रैवल कर चुके हूं. हर देश में आप जाइए, जैसा हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप और फेडरेशन जैसा संस्था जो डेवलप्ड कंट्रीज है उधर अच्छा चल रहा है. मतलब अमेरिका में जाइए कोऑपरेटिव बहुत बढ़िया है, कनाडा में जाइए बहुत बढ़िया है, आप जर्मनी में जाइए बेस्ट, 160 साल से ऑटोनमसली चल रहा है. अभी हम 2 हफ्ते पहले उधर एक 1 वीक एक्सपोजर विजिट जाके आया. तो मतलब जो भी डेवलप्ड कंट्रीज में जो पॉलिसीज और जो रेगुलेशंस और जो नियम बनते हैं, लॉस बनते हैं, उसके हिसाब से संस्था खुद चलाने का अधिकार रहते हैं. आपको ये भी मालूम होगा कि हमारा देश में प्राइवेट कंपनीज खुद चलाते हैं.
उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो खुद अपॉइंटमेंट करते हैं। मगर जो गरीब लोगों का संस्था है, वो महिलाओं का स्वयं सहायता समूह हो, संगठन हो, या वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई और तरह का संस्था, वो लीगल फॉर्म भी आपको उसका मदद देता है, फिर भी हमारा व्यवस्था ऐसा है कि उसको ऑटोनॉमी नहीं रहने का। और वो मेरा ख्याल से हमारा भाई साहब सब लोग बताया कि क्या हम उसका कैपेसिटी हम बढ़ाते हैं। और मेरा ख्याल से ये स्वयं सहायता समूह का जो आंदोलन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के माध्यम से चल रहा है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के माध्यम से चल रहा है, नाबार्ड के माध्यम से चल रहा है, ये सब कैपेसिटी बिल्डिंग भी बढ़िया कर रहा है। मगर जहां वो लोग उन संस्थाओं को खुद चलाना चाहते हैं, जैसा बैंक जैसा चलाना चाहते हैं, जैसा मार्केटिंग एजेंसी जैसा चलाना चाहते हैं, जैसा वो लोग एक इनपुट सप्लाई सिस्टम जैसा चलाना चाहते हैं, वो थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए आई थिंक हम इधर जो सब लोग बैठे हैं, ये सोचना चाहिए कि ऑटोनॉमी कोई देने की चीज नहीं है, वो लेने की चीज है। तो महिलाओं ने 30 साल में जो भी उपलब्धि हुआ है, वो आप अभी तय करना चाहिए कि आपको ऑटोनॉमी चाहिए नहीं चाहिए। आप ऑटोनॉमी नहीं लेना चाहते हैं, आप खुद नहीं चलाना चाहते हैं, जैसा बहुत सारा लोग बताया, तो सरकार आपका ऊपर नियंत्रण करेगा, कोई आपका निर्णय आपका कोई लेगा। बहुत सारा फेडरेशन का बोर्ड मीटिंग होता है, निर्णय पहले ही हो जाता, कोई स्टाफ उसका निर्णय कर लेता है। सो आई थिंक इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विमेन, जो महिला है वो आप ये तय करना चाहिए कि आपका ग्राम संगठन को, आपका संकुल संघ को, आपका जिला समाख्या को क्या आप लोग खुद चलाना चाहते हैं या कोई अधिकारी का या एनजीओ के हाथ में छोड़ देना चाहते हैं। ये मेरा ख्याल से 30 साल का जो कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और मेरा ख्याल से हमारा जो 1.2 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये जानकारी अभी आधा भी नहीं पहुंचा है। मे बी वी कैन से सेफली 25% हमारा देश में जो एसएचजीज और फेडरेशंस हैं, जिसमें ये जानकारी है कि हमारा संस्था हम खुद चलाना चाहिए, हमारा बुक्स हम ही लिखना चाहिए, हमारा मतलब निर्णय हम ही लेना चाहिए, हमारा इलेक्शन हम ही करना चाहिए, हमारा रेटिंग हमारा हम ही करना चाहिए, हमारा ऑडिट, ये जो स्वयं नियंत्रण का कार्यक्रम हम ही करना है। तो ये एक बात है। तो मैं 2-3 मुद्दा है वो बता के मैं समाप्त करता हूं। एक है, हम सबके लिए हमारा संविधान ने एक अधिकार दिया है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आई कांट से दिस इन हिंदी, 97th रितेश। सो अभी मतलब 2011-12 मतलब लगभग 10 साल पहले एक संशोधन किया था हमारा राज्यांग का। तो उस संशोधन में ये बताया कि जो कोऑपरेटिव बनाना चाहते हैं, जैसा स्वयं सहायता समूह, संगठन या कोई फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल बेनिफिट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वैल्यूज की मायने रखते हैं, तो उसके लिए 19(1)(c एप्लीकेबल है। मतलब राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स इज ए फंडामेंटल राइट, हमारा स्वयं सिद्ध प्राथमिक अधिकार है हम सबका, पूरा देश में सिटीजन्स का एक कोऑपरेटिव बनाने का ये एक प्राथमिक अधिकार है हमारा। तो इसके हिसाब से हम हमारा मतलब कोई ऐसा है कि आपका फेडरेशन को हम लीडर्स को सुपरसीड करेंगे, आप कोऑपरेटिव ऑडिट कराना है, हम स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी लगाएंगे, उसका अथॉरिटी का आपका इलेक्शन करेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल से 2021 में जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि कोऑपरेटिव्स के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम सब लोग उसको समझना चाहिए। और जो भी लॉस है, कोऑपरेटिव लॉस, अभी जो आंध्रा तेलंगाना में जो मैक्स एक्ट है वो उसके हिसाब से है, मगर हम कैसे उसको
इस्तेमाल करते हैं वो हम देखना चाहिए। इसीलिए हमारा देश में जो 1.2 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप है और लगभग 5 लाख स्वयं सहायता समूह का जो फेडरेशन है, आप लोग खुद अपना कार्यक्रम चलाने का संभावना है, मगर वो जिम्मेवारी आप लेना चाहिए। और एक और मौका हमारे लिए सबके लिए है, ये कॉन्फ्रेंस भी उसी समय में अच्छा मौका है कि अभी हमारा भारत सरकार कोऑपरेटिव्स का एक पॉलिसी बना रहा है। ये दिसंबर एंड तक एक पॉलिसी बन जाना चाहिए। तो हम इस कॉन्फ्रेंस का भी कुछ रिकमेंडेशंस उनको भेजने वाले हैं कि वो एक पॉलिसी ऐसा बनाना चाहते हैं, उसमें हम ये भी प्रावधान अभी पूछा है कि एसएचजी फेडरेशन के लिए एक सेपरेट एक्ट होना जरूरी है। स्वयं सहायता समूह और संगठन के लिए एक लीगल फॉर्म होने की जरूरत है। तो हमारा मांग क्या है? हमारा फेडरेशन के लिए टैक्स नहीं लगना चाहिए, हमारा जीएसटी का, हमारा इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। अभी बहुत सारा फेडरेशन का टैक्स लग रहा है, तो ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये मांग हम आपके तरफ से हमारा ये नेशनल पॉलिसी में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी इसका जो चेयरपर्सन है बहुत ही अच्छा आदमी है, हमारा महाराष्ट्र का व्हाट इज हिज नेम, सुरेश प्रभु जी। तो सुरेश प्रभु जी ने ओपन निमंत्रण दिया कि आपका फेडरेशन का भी मीटिंग करो, एनजीओ का भी मीटिंग करो, एकेडमिशियंस का भी मीटिंग करो, पूरा रिकमेंडेशंस भेजिए। जो पुणे में एक संस्था वैमनीकॉम है, वो लोग इसका कन्वीनर है। तो हम इस 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस है उसमें से जो भी रिकमेंडेशंस आएंगे वो सब उनको भेजेंगे। आप कोई भेजना है तो भेज दीजिए, उनका भी आपका एड्रेस दे देते हैं हम। आप एपी मास के माध्यम से भेजिए या एनेबल नेटवर्क के माध्यम से भेजिए, ऐसा जरूरत नहीं है। आप सब लोग सीधा वो नेशनल कमिटी, एक जम्बूरी है, वो 50 लोग उसका कमिटी का सदस्य है, वो कमिटी को आप निमंत्रण भेज सकते हैं, आपका सजेशंस भेज सकते हैं, आपका रिकमेंडेशंस भेज सकते हैं। और तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, हमारा स्वयं सहायता समूह संगठन और जो भी कल एक बातचीत हुआ, हमारा एक नेशनल लेवल कॉन्फेडरेशन ऑफ एसएचजी फेडरेशंस आपका खुद का होना चाहिए। मतलब आपका एसएचजी फेडरेशन अभी ब्लॉक तक है या क्लस्टर तक है या मंडल तक है, कुछ जिला तक भी फेडरेशन बन गया, मगर ये नेशनल लेवल जैसा जर्मनी में एक कॉन्फेडरेशन है जो उसका डीजीआरबी बोलते हैं, जर्मन राइफाइजन कॉन्फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, वो ऐसा एक इंडिपेंडेंट महिलाओं का खुद का एक संस्था बनना चाहिए, जिसका माध्यम से फी बेस्ड, बाय द वे ये मुफ्त में कोई सेवा नहीं देते, क्योंकि हर एक स्वयं सहायता समूह और संगठन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है। तो आपका जो फेडरेशन जो सेवाएं देंगे, ऑडिट सेवाएं, आपका कोई लॉबिंग का सेवाएं देना है, रेटिंग का सेवा देना है, आपका कोई इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन का सेवा देना है, आपका ट्रेनिंग का सेवा देना है, आपका सॉफ्टवेयर, अब बहन जी बताया कि आप जैसा सॉफ्टवेयर बता रहे हैं, लोग सोच रहे हैं क्या है ये। तो टेक्नोलॉजी को हम कैसे, आजकल मोबाइल का सब लोग फायदा उठा रहा है, तो क्या हम इसको फायदा उठा सकते हैं कि तो जैसा सिस्टम जर्मनी में है, हम इंडिया में स्वयं सहायता समूह और संगठन के माध्यम से, क्योंकि एपी मास एनेबल नेटवर्क हम डीजीआरबी के साथ 15 साल से काम कर रहे हैं, वो लोग उनका लोगो भी उधर लगा हुआ है, डीजीआरबी हमारे साथ 15 साल से जुड़े हैं। तो हम सोचते हैं भारत सरकार, नाबार्ड, पूरा संस्थाएं, बैंक्स वगैरह मिलके हम ये स्वयं नियंत्रण का एक आंदोलन चलाना है और स्वयं सहायता समूहों का ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस के लिए उनका खुद का एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हर स्तर पर, राज्य स्तर पर और नेशनल लेवल पे होना चाहिए, जो ट्रेनिंग भी करेगा उनका एसएचजी का, फेडरेशन का, सोशल कैपिटल, जो दीदी ने बोला आर्मी,
वो जो आर्मी ऑफ जानकार, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो भी है उनका पूरा वो लोग देना चाहिए। तो ऑटोनॉमी होना चाहिए और मेरा ख्याल से कैपेसिटी का कोई कमी नहीं है, महिलाओं का क्षमता है। महिलाओं ने ये पूरा दिखा दिया कि हमारा ऑडिट हम खुद कर सकते हैं, हमारा इलेक्शन हम खुद कर सकते हैं, हमारा ट्रेनिंग हम खुद कर सकते हैं, हमारा बिजनेस हम खुद कर सकते हैं। कुछ महिला ऐसा है जो बिजनेस प्लान भी बना सकते हैं, मगर उनको वो अधिकार और उनका वो मौका देना चाहिए और कोई देने वाला नहीं होना चाहिए, मगर उसका ऐसा एक पॉलिसी एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होंगे तो मेरा ख्याल से ये अगले 10 साल में स्वयं सहायता समूह का जो आंदोलन है हमारा देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन बन के दिस प्रॉस्पेरिटी का जो बात हुआ वो हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। థ్యాంక్ యూ రెడ్డి గారు, చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్స్ చెప్పారు. తెలుగులో చెప్పలేదు రెడ్డి గారు, కానీ ముఖ్యంగా చెప్పింది ఏంటంటే మన సంస్థలు స్వయం ప్రతిపత్తిగా కలగాలని ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ చెప్పారు. ఇప్పుడు నేషనల్ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కోఆపరేటివ్స్ మీద ప్రత్యేకంగా ఒక చట్టం తీసుకురావాలనుకుంటున్నారు. ఆ చట్టంలో ముఖ్యంగా మన స్వయం సహాయత సంఘాల ఫెడరేషన్స్ వాటికి ఎలాంటి ప్రతిపత్తులు కల్పించాలనే విషయం గురించి దానికి మీ అందరి సలహాలు కూడా తెలియజేయమని చెప్పారు. అది కాకుండా మనందరం కూడా ఇలాగ దేశ స్థాయిలో కానీ రాష్ట్ర స్థాయిలో కానీ అన్ని సంఘాలు సంస్థలు కలిసి కూడా ఒక సంస్థగా ఏర్పడితే ఇంకా ముందుకెళ్ళడానికి వీలుంటుందని చాలా చక్కటి పాయింట్ చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ రెడ్డి గారు. आई थिंक आई जस्ट अभी 10 मिनट टाइम हम आपके लिए देंगे. आपको अभी बहुत पॉइंट्स सभी पैनलिस्ट ने पॉइंट्स आपके सामने रखा है, तो आपका भी कुछ सवाल है तो या कुछ पॉइंट्स आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं. అండ్ ఇప్పుడు ప్యానలిస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పారు. ఈ ఆడియన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఒక 10 నిమిషాలు టైం ఇస్తాము. వాళ్ళ ఆలోచనలు కావచ్చు, అంటే సంస్థని స్వయం ప్రతిపత్తిగా నడిపించడంలో వీళ్ళు చెప్పిన పాయింట్ ఏకీభవించవచ్చు, ఏకీభవించకపోవచ్చు, లేకపోతే కొత్త పాయింట్ చెప్పొచ్చు. आप नया पॉइंट भी जोड़ सकते हैं, आप बोल सकते हैं, कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं कि सर हम तो चलाना चाहते हैं मगर हमारा ये अड़चन है, तो ऐसा भी आप पूछ सकते हैं. तो इसके लिए 10-15 मिनट्स माइक थोड़ा नीचे भेज दीजिए. हाथ उठाइए. हाँ राइट, आपका नाम बताइए और आपका क्वेश्चन बताइए. या वेरी आप तो इधर फर्स्ट. हाँ राइट. डॉक्टर मंजुला, महिला समाख्य कर्नाटक and representing Karnataka state. Sir, రెడ్డి గారు చెప్పారు కదా సిఎస్ సార్, I just wanted to add a couple of things. Yeah, DGRV Act, DGRV जर्मनी लागा ई रोजु अंते आज हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सारे राष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, मदर ऑर्गेनाइजेशंस भी है. Why can't we start it? Why not wait for the government? We can just start from each, because each one of our like Dr. Sudha ma'am की संस्था है, हम लोगों का संस्था है, we are working with 11,000 researches. So शुरुआत कहीं से तो होना चाहिए ना. So हम लोग शुरू क्यों नहीं कर सकते? Thanks man. So ready you want to take it? yeah. ఇంకా और थोड़ा क्वेश्चंस ले सकते हैं. అందరికీ నమస్కారం. మాది తెలంగాణ స్టేట్ నిజామాబాద్ జిల్లా నవీపేట మండలం ఉషారాణి నా పేరు. అంతా వేదిక మీద చెప్పినట్టు మనం కింది స్థాయి వరకు కూడా ఈ విషయాలు చేరం, ఎందుకంటే మనం కొన్ని విషయాలు మాత్రమే కింది స్థాయి వరకు చేర్చగలుగుతాం. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం శ్రీనిధి డైరెక్టర్ గా ఉన్నాను నేను. శ్రీనిధి సంస్థ 2011 సంవత్సరంలో స్థాపించుకున్న తర్వాత అసలు శ్రీనిధి సంస్థ నడుస్తుందా నడవదా అన్న భయంతో మేము స్టార్ట్ చేసాం. 10 లక్షలు మండల సమాఖ్యలు 10 లక్షలు డిపాజిట్ పెట్టి శ్రీనిధి సంస్థ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. అయితే ఈ బ్యాంక్ లింకేజ్ ద్వారా మనం తీసుకున్న అప్పులు సకాలంలో చెల్లిస్తున్నాము, మనకి ఏమి రిటర్న్ అనేవి రావు. అంటే కొంచెం సర్వీస్ ఛార్జీలు కానీ ఏదైనా సరే కొద్ది కూడా మనకు రిటర్న్ రాదు. ఈ శ్రీనిధి ద్వారా మనం ఇచ్చిన అప్పులకి డివిడెండ్ రూపంలో మళ్ళీ మనమే తింటా ఉంటాం. కానీ ఆ విషయము కింది స్థాయి వరకు కూడా తెలవట్లేదు. బ్యాంక్ లోన్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇస్తున్నాం, బాగా తీసుకుంటున్నాము, అన్ని బాగా చేస్తున్నాం, కానీ చేసే విధంలో ఏమవుతుందంటే టార్గెట్లు పెట్టేసరికి చాలా కింది స్థాయి ఇబ్బందులు అవుతుంది. సో మీ పాయింట్ ఏంటంటే మీ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారా లేకపోతే ఇలా జరగటం లేదు దానికి సలహా చెప్తున్నారా? జరగట్లేదు. జరగాలంటే ఏం చేయాలి? మీరు అన్నారు కదా స్వయంగా చేయాలంటే మీ సలహా ఏమైనా ఉందా?
కింది స్థాయిలో నుంచి ఏ సలహాలు సూచనలు తీసుకున్న తర్వాత పై స్థాయిలో అమలు చేస్తే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం. थैंक यू राइट ఓకే. सी शी इज बेसिकली सेइंग दैट Thank you, sir. हाँ अभी ये दीदी बता रहे हैं कि ये दीदी एक्चुअली श्रीनिधि का बोर्ड में भी मेंबर है. वो दीदी पूछ रहा है कि हम बोर्ड में मेंबर हैं, हम तो एक अच्छा बैंक चला रहे हैं, मगर जो यहाँ हो रहा है ये श्रीनिधि में, ये हमारा एसएचजी और हमारे गांव की सर पर पे जो महिला है उनको पता नहीं है. तो ये चीज को मिटाना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए और जो निर्णय लेते हैं श्रीनिधि में ये नीचे से आना चाहिए. वो अभी नहीं हो रहा है, ये एक आवेदन व्यक्त कर रहे हैं. और पहला जो दीदी ने बताया कि जैसा सर ने बता रहा था कंसंट्रेशन बनाने का, ये दीदी बोल रहे कि हम आज क्यों नहीं शुरू करेंगे, ये एक सवाल पूछा है. ठीक है, थर्ड आप कुछ बोलना चाहते हैं दीदी? राइट भाई, ठीक है. हाँ राइट, धर्मेंद्र आपके बाद. సార్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఈ కోఆపరేటివ్ స్పెషల్ యాక్ట్ అనేది ఎస్ఎల్జీస్కి ఇవ్వడం అనేది చాలా, అంటే మన సలహాలు అడగడం, తర్వాత కోఆపరేటివ్ లో యాక్ట్ చేంజెస్ చేయాలని కొంత ముందు రావడం అనేది చాలా సూపర్. అయితే దీనిలో కొన్ని యాడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఎస్ఎల్జీస్ ఫెడరేషన్స్ లో మనకు తెలియకుండా చాలా బ్యాంక్స్ లో లాట్ ఆఫ్ చార్జెస్ కలెక్ట్, లైక్ ప్రాసెసింగ్ చార్జెస్ అని కానీ, లేకపోతే డాక్యుమెంట్ మన స్టేట్మెంట్ కోసం ఎంత కూడా చార్జెస్ తీసుకున్నారు. చాలా బ్యాంక్ కి ఇండైరెక్ట్ గా ఎస్ఎల్జీస్ ద్వారా చాలా ఇన్కమ్ కూడా వస్తుంది. దీన్ని కొంత వాళ్ళు సబ్సిడీ కానీ కొంత తగ్గించాలి. ఎందుకంటే కమర్షియల్ కంపెనీస్ దగ్గర చార్జ్ మోర్, కానీ ఎస్ఎల్జీస్ దగ్గర కూడా వాళ్ళు వసూలు చేయడము. తర్వాత బ్యాంక్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంత రెవల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా స్టిల్ చాలా ఫెడరేషన్స్ వెళ్ళి బ్యాంకులో చాలా టైం వేస్ట్ చేసుకుని అక్కడే నుంచుని స్టేట్మెంట్ కోసం కానీ, బుక్స్ అప్డేట్ చేయడానికి కోసం కానీ, లోన్ కావాలంటే అక్కడ మళ్ళీ ఏదో మదర్ ఎన్జిఓ కానీ లేకుంటే ప్రమోటర్ కానీ ఒక లెటర్ ఇవ్వాలని కండిషన్స్ పెడుతున్నారు. సో దీన్ని కూడా బ్రేక్ చేస్తూ ఎస్ఎల్జీసీ అటానమస్ గా అక్కడ ఉన్న ఫెడరేషన్ ద్వారా, ఫెడరేషన్ రికమెండేషన్ ద్వారానే ఇవన్నీ తెచ్చుకునేలాగా తప్పకుండా ఈ ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ లో తగ్గించి చెప్పడం అయితే రూపాయి అంటారు కానీ రూపాయి పావులు వసూలు చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ లేకుండా ట్రాన్స్పరెంట్ ఉండాలనేది మై సజెషన్. ये भैया बता रहे हैं कि अभी एसएचजी में जो एक्ट चेंजेस की सर ने बताया, इसमें बेसिकली वो बोल रहे हैं कि बैंक लोग आजकल लोन देते हैं तो बहुत थोड़ा अभी भी तंग कर रहे हैं, और लोन देना है तो गवर्नमेंट का सिफारिश चाहिए या एनजीओ का सिफारिश चाहिए, ऐसा कर रहे हैं. ऐसा ना करते हुए अपना फेडरेशन का सिफारिश से लोन देना चाहिए, और जो भी चार्जेस है थोड़ा ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए. वो एक चीज उन्होंने बताया. अमीर दौड़ता ना इधर माइक दीजिए सर प्लीज. Yeah, we'll come. There are comments and reflections. Sir, please. The point she raised as member of Srinidhi director, who is a president of a Mandal Samakya at Mandal level, has raised a very important point. Today, most of the rural bank branches have become cost effective just because of SCG Bank Linkage program, where the recovery rate is something between 95 to 100%. In such a case, earlier, prior to this, if you had seen, because I had seen 30 years of my service with SCG Bank Linkage program. Okay, sir. Now, what she says, in Srinidhi they follow a good system of giving some commissions to the Mandal Samakyas. The SCG Bank Linkage would have been just impossible but for the federations which are supervising, monitoring and developing an intermediary mechanism between the community and the bank branches in the rural areas. Yeah. So a type of commission can be thought of. See, not too much talk about so many concessions. See, if SLGs and SLG federations are given too many concessions, what happens in the present socio-economic setting is lot of bad elements make use of these concessions, and the people, the real stakeholders in the institutions will migrate to the margins of the society again. Okay, sir. So Thank this you. is very important. Thank you. A good suggestion. Basically, ये बैंकों के लिए अच्छा सुझाव दिया है. I think last 2 points we'll take. అందరికీ నమస్కారము.
మన జనగామ జిల్లా బాలమణి సార్ చెప్పినట్టు అన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. మేము ఇంతకైతే సంఘాలు పెట్టుకున్నాం. సంఘాలు మా బలోపేతమైన మేము మంచిగా నడుపుకుంటున్నాం సార్. మంచి సలహా సూచనలు ఇచ్చిండు. మేమేమంటున్నాం, మేము చేసే ఉత్పత్తులు మన రాష్ట్రం నుండి వేరే రాష్ట్రాల్లో అక్కడికి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి మన సంఘాల ద్వారా ఎలాంటి రుసుము లేకుండా మనకు కల్పిస్తే మేము కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ డెవలప్ అయ్యి మా బలోపేతాన్ని నిరూపిస్తున్నామని అంటుంది సార్. ఖచ్చితంగా ఇది ఏంటి సార్? थैंक यू. ये दीदी बता रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है ये प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ शुल्क नहीं होना चाहिए, बाकी जगह भी मार्केट करने का एक मौका मिलना चाहिए. लास्ट मैडम आपका लास्ट पॉइंट, क्योंकि टाइम कम है, अभी समराइज करेंगे क्योंकि अभी टाइम हो गया. लास्ट पर्सन. हाँ नमस्कार. महिला आर्थिक विकास महामंडळ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट द्वारा प्रगती लोक संचलित साधन केंद्र फेडरेशनची मी मॅनेजर आहे. जवळजवळ 17-18 वर्ष इथं काम करते. जसं कालपासून ऐकत आलेलं आहोत की आपल्या म्हणजे महिलांना सस्टेन करण्यासाठी बँक लिंकेजचा किती मोठा हात लागणार आहे. तर आतापर्यंत आम्ही 4 फॅक्टरवरती कामं केलेली आहेत. कॅपॅसिटी बिल्ड, ग्रासरूट, GIB आहे, मायक्रो फायनान्स आहे, लाईव्हलीहूड आहे. आपका सवाल क्या है? हाँ, सवाल माइक्रो फाइनेंस. तो ये माइक्रो फाइनेंस द्वारा हम महिलाओं को एसएचजी द्वारा जो लिंकेज कर रहे हैं वो इससे लिंकेज के बाद हम एमएफ भी कर रहे हैं, पर्सनल फाइनेंस भी कर रहे हैं और जेएससी भी दे रहे हैं. लेकिन अभी फेडरेशन को, अभी वीओ को हम लिंकेज के बारे में बोल रहे हैं, जो बैंक अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे. नेशनल बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे, इसकी वजह से हम MFI के पास जा रहे हैं. ऐसे बड़े तौर से हमको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अभी भी नेशनल बैंक हम पे विश्वास नहीं कर रहे. वो MOU होने के द्वारा भी हमको बहुत सारी कंडीशन टर्म लाग रहे हैं. इसीलिए एसएचजी आगे नहीं जा रहे हैं. फिर फेडरेशन का ही उनको रिकमेंडेशन लेटर देना पड़ता है. इसके बाद हमने क्या किया, वीओ को कुछ फेडरेशन के बाद हमारे लोक संचालित साधन केंद्र के द्वारा फंड प्रोवाइड किया. जैसे कि एक वीओ को 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे. तो आपका सुझाव है कि बैंक को थोड़ा आपको रिकॉग्नाइज करके आपका फेडरेशन को सपोर्ट करना चाहिए. और एक बात ऐसी है कि अगर फेडरेशन सस्टेन हो जाए तो ये गवर्नमेंट अटैच क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उसके भविष्य के बारे में क्या पॉलिसी हम ये रन कर सकते हैं, उनका भविष्य क्या हो सकता है. Right. Thank you. Thank you. Okay. I think mota-moti lot of points came only as a kind of suggestions or inputs. I don't think except that one question which she has asked, but I don't know whether this is something which it has to because ऐसा मुझे लगता है ऐसा जल्दबाज में नहीं करना है. मेरा जो भी अनुभव है, जो आप बोलते हैं कन्फेडरेशन बनाने का बात होता है, ऐसा नहीं कि हम सब लोग अभी आ गए तो इधर कर लेंगे. ऐसा तो मेरा अनुभव में 30 साल से मैं बोलता हूँ बहुत नेटवर्क हमने किया है. नेटवर्क का ताकत होता है, जो नीचे संस्था ताकतबंद होना चाहिए, बाद में नेटवर्क ताकत होता है. तो इसलिए मैं बोलता हूँ उसके लिए थोड़ा अभी सुझाव आया है, बहुत अच्छा है. इसमें हम सब लोग विचार करेंगे और आगे चलाएंगे. तो कमिंग बैक टू थोड़ा मैं समअप करना चाहता हूँ. तो अच्छा डिस्कशन है. थैंक यू फॉर द पैनल एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू. सो आई वुड लाइक टू पुट, मेरा भी थोड़ा सुझाव है क्योंकि मेरा अनुभव अभी ऑलमोस्ट 33 ईयर्स से यहाँ एसएचजी फेडरेशन बनाने में मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ. एंड मेरा फेडरेशन मैं खुद से फेडरेशन बनाया. मैं जब 25 ईयर्स का था, अभी मैं 60 ईयर ऑलमोस्ट 59 ईयर्स पे पहुंच गया. तो इस 35 ईयर्स से बहुत फेडरेशंस को मैंने देखा है, बहुत संस्था को भी देखा है और गवर्नमेंट का फेडरेशंस में भी आज का दिन जीविका भी है या PSRL है या NRTP है, इसमें भी बहुत देखा है. तो इसमें मेरा थोड़ा अनुभव है क्योंकि हमने बहुत कुछ साकार किया है ये 30 साल में. जैसा एसएचजी का एक पहचान बना है, एक मूवमेंट के रूप में भी, आंदोलन के रूप में भी आगे बढ़ा है, मगर बहुत चीजों में मुझे लगता है और भी कमियां हैं. उसमें एक चीज है कि ये स्वयं प्रतिपत्ति, जैसा सर ने भी बता रहा था, 150 साल के बाद भी हम कोऑपरेटिव का, स्वयं प्रतिपत्ति का, इंडिपेंडेंस का बात कर रहे हैं. ये बहुत शोकनीय बात है क्योंकि एक तरफ हम बोल रहे हैं सेल्फ हेल्प. सो ये आंदोलन का नाम ही है सेल्फ हेल्प. सेल्फ हेल्प का मतलब है ये किसी और का मदद ना होने से अपने आप में चलना चाहिए. मगर अपने आप में चलना चाहिए तो ऑटोनॉमी का क्यों बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस का क्यों बात कर रहे हैं. तो इसमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है. क्योंकि ये क्या प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है पहला जैसा सर भी बता रहा था, CS रेड्डी जी बोल रहा था, हम सशक्त या स्वयं चलाने के लिए हमको पहले हमारा इंटरनल कमिटमेंट होना चाहिए. हमको एक कमिटमेंट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हमको स्वयं चलाना चाहिए क्योंकि ये एक भावना और एक वैल्यू है. इसका एक
कंटिन्यूएशन है तो मुझे लगता है आज भी आपका संस्था आप चला सकते, ठीक है। अभी गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम है या कुछ आपको गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं या कुछ एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं है, ये सब ठीक रहेगा, मगर इसके बावजूद भी आज देश में बहुत अच्छा संस्था भी चल रहा है। देखो अभी 50 साल से हमारा मुल्कनूर कोऑपरेटिव चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्योंकि वो भी एक अपने आप में चल रहा है। तो ऐसा संभावना है, अभी अपने सामने वो तिरुपति का पद्मावती सोसाइटी है, 30 साल 33 ईयर से वो चल रहा है, कैसे चल रहा है। एंड आपका भी जैसा बहुत लोगों को आपको अवार्ड मिला है, तो उसी को देख के ही आपको अवार्ड दिया है। तो ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता है, मगर इसमें हमको अभी जैसा बहुत लोग भी बताया क्या क्या प्रिंसिपल्स, अभी हमारा जर्नी इतने साल का हमने सीखा, तो इसमें हमने क्या सीखा है, इसमें थोड़ा मुझे लगता है 5 या 10 पॉइंट आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। ये 10 पॉइंट आप थोड़ा फोकस किए तो मुझे लगता है कोई भी संस्था ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस में हो सकता है। मेरा ये विश्वास है हर फेडरेशन अपने स्तर पर पे खड़ा होकर अपने इंडिपेंडेंस कर सकते हैं। ये नहीं हो रहा है तो ये फेडरेशन का कमी है, गवर्नमेंट का कमी नहीं है, फेडरेशन का कमी है, लीडर का कमी है, आपका सिस्टम्स का कमी है। तो इसमें मेरा फर्स्ट पॉइंट है आपको अपना नियम बनाने का, जैसा वो सुनीता दीदी अपना कामा रेड्डी का दीदी आगे बताया था ना, हमारा नियम हम बना रहे, तो ये नियम बनाने का फर्स्ट आपका हाथ में लेना चाहिए। जो भी ये बुक कीपिंग है, ऑडिटिंग है, अकाउंट है, आपका स्टाफ को रखना है। अभी देखो बहुत गवर्नमेंट का फेडरेशन में स्टाफ को रखना है तो यू आर डिपेंडिंग, आप बहुत फेडरेशन में पैसे हैं मगर अपना खुद का स्टाफ लगाने के लिए दे आर नॉट इंटरेस्टेड और दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। तो इसके लिए लड़ाई करना है। तो फर्स्ट थिंग इज अपना खुद का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्टाफ स्ट्रक्चर वो हो, या इंटरेस्ट रेट्स कितना लगाना है, किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है। ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको कुछ गाइडलाइंस दिया है, मगर ये गाइडलाइंस आपका पूरा एक गला में फंस नहीं जाना चाहिए, तो आपको उस गाइडलाइन से भी बाहर निकलना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम भी है, खास करके जो गवर्नमेंट का फेडरेशन है, एनआरएलएम, एसआरएलएम में, इनका एसआरएलएम लोगों के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, रितेश जी से भी बहुत बार हमने बताया कि आपका रोल क्या है। आपका रोल एक मार्गदर्शन के लेने का रोल है, मगर आप पकड़ के रख रहे हैं। जैसा कौशिक ने भी बताया, ये प्रमोटर का पकड़ के रखने का भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए भी महिला अपना खुद का निर्णय नहीं ले पा रहा। महिला को तो क्षमता है, निर्णय लेने का क्षमता है, जैसा मीरा दीदी ने बताया, मगर सृजन हाथ छोड़ा तो अपने आप आगे चलेगा ना, मगर सृजन आप हाथ पकड़ के रखा तो कैसा आगे चलेगा। तो जो संस्था है जहां जहां हाथ छोड़ के लोगों को एक स्पेस दिया है तो आगे बढ़ने का एक मौका मिला है। तो ये पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट, बहुत दिन आई थिंक ये लीगल स्टेटस के ऊपर भी बहस हो रहा था, अभी भी बहुत स्टेट्स में एक अच्छा लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। रेड्डी सर भी बहुत इसके बारे में बात किया है, हमारा भी एक्सपीरियंस है कि एक लीगल स्टेटस जरूर होना चाहिए। इसके लिए हमारा रिक्वेस्ट है कि से भी थोड़ा अभी एक्ट चेंजेस हो रहा है तो उसमें सभी लोगों का इनपुट दे दीजिए कंपल्सरीली। मुझे लगता है जब ये मैक्स एक्ट बहुत अच्छा, अभी तो जो भी है एग्जिस्टिंग में मैक्स इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट, एंड जहां जहां हमने मैक्स एक्ट में या सोसाइटी एक्ट में किया है वहां बहुत कुछ फेडरेशन आगे बढ़ने का एक उम्मीद बढ़ रहा है। तो सेकंड थिंग इज एक्ट में कुछ चेंजेस लाने का, राजीव का भी ने कुछ किया है, ऐसा हर स्टेट में ये एफर्ट्स भी करना चाहिए। दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है एक्चुअली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी एक बहुत अहम भूमिका होता है। तो ऐसे सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए नहीं है, मगर वो अपना हक भी निभाना चाहिए। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बहुत, स्पेशली खास करके मेरा रिक्वेस्ट है जो गवर्नमेंट का जो प्रमोटेड फेडरेशन है, तेलंगाना, आंध्रा या असम, सब जगह में आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आप बोलना चाहिए, आपका हक है। आप ऐसा ऑफिसर बोलता है इधर साइन करो उधर साइन करो, ऐसा नहीं है, आप ही आपका सोच दिमाग लगा के चलाना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो आपका ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस का बात कुछ नहीं होता। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है आपका खर्च आपको उठाना चाहिए। आपका खर्च आपको उठाना है तो आपका आमदनी का स्रोत देखना चाहिए। आज का दिन क्या हो रहा है, बहुत फेडरेशंस में कैसा सर्विस कॉस्ट भी नहीं कलेक्ट करते हैं, एंड ओनली फ्यू फेडरेशंस, अभी चैतन्य का भी एग्जांपल ले सकते हैं, तिरुपति का भी एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत फेडरेशन जहां सस्टेनेबल हुआ है वहां लेंडिंग अपने आप का होता है। तो एक 10 लाख रुपए भी आपका डिपॉजिट्स फेडरेशन में डाल के रोटेट करो, उसमें से आपको आमदनी निकलेगा। इसके बाद थोड़ा सर्विस कॉस्ट, हर एक एसएचजी सर्विस कॉस्ट डालना चाहिए। अभी देखो आज तिरुपति में एक एसएचजी
हर साल में 6,000 रुपए फेडरेशन का सर्विस कॉस्ट देता है। 6,000, ये 6,000 से 500 फेडरेशन 30 लाख रुपए सर्विस कॉस्ट दे रहे, और इसके अलावा उनको 40 लाख उसका इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है। सो 17 लाख का कंपनी वो चला रहा है। ये 17 लाख में वो लोग 3 प्रोफेशनल्स को हायर कर रहे हैं, 3 प्रोफेशनल का सैलरी दे रहे हैं, 30 फील्ड स्टाफ का सैलरी दे रहे हैं, 3 कंप्यूटर्स लगा रहे हैं, मोबाइल बुक कीपिंग लगा रहे हैं। ये कैसा हो रहा है? पूरा पैसा उन्हीं का है, किसी में एक लोगों का, बाहर लोगों का पैसा नहीं। तो मेरा पहला सूत्र है कि आपका कास्ट कवरेज करने का मार्ग आपको ढूंढना चाहिए, आपका खर्च निकालने का मार्ग आपको ढूंढना चाहिए। और आप स्टाफ लगाने में आप यू शुड नॉट थिंक अरे इतना स्टाफ लगाए तो क्या हो, मगर जब तक आपका अच्छा स्टाफ नहीं होगा, आपका फेडरेशन में अच्छा प्रोफेशनल्स नहीं होगा, तो आपका प्रोफेशनल आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं इससे और अकाउंटिंग ऑडिटिंग के बारे में बहुत लोग बात किया है, एमएस के बारे में भी बात किया है, और खास करके आपका प्रॉफिट शेयरिंग भी करना चाहिए, क्योंकि अभी आपका एसएचजी में आप सेविंग कर रहे हैं, मगर आपका सेविंग के इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे। इतना दौर्भाग्य स्थिति है हमारा एसएचजी का, सेविंग्स बनाया है मगर सेविंग के इंटरेस्ट नहीं देना है क्या? तो कैसा बनेगा एसएचजी? बैंक के रूप में कैसा बनेगा? आपको हक बनता है, आपका पैसे डाला तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और आपका प्रॉफिट, हर एक एसएचजी में आपको प्रॉफिट मिला है, मगर कोई भी नहीं पूछता है मेरा प्रॉफिट कितना है। गवर्नमेंट ने बनाया, ये गवर्नमेंट का ग्रुप थोड़ी है, फेडरेशन गवर्नमेंट का थोड़ी है। तो अभी मैं इससे अभी क्लोज करता हूं। तो मेरे ख्याल से जैसा ये मुख्य पॉइंट्स अभी हमने बात किया है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, और इसके आगे भी आप और आगे स्वतंत्र होने का एक प्रयास करना चाहिए। और ये मौका देने के लिए एपीमास और सभी लोगों को धन्यवाद। नमस्कार। Thank you very much, all the panelists and the chairpersons who moderated and summed up the session. And everyone, the women in the institutions, you need to think that you have to become independent, and the institutions should enjoy autonomy. And also whoever is promoting also should be with this perspective, that the institution should function on their own. So with these few words, I request the members to be seated for 2 minutes. We would like to present mementos and shawls. So I request Mr. Narendra to present the memento to Mr. Ritesh Kumar from Jivika. Next, I request Professor Shailendra to present a memento to Mr. Kaushik. I request Ms. Sudha, Dr. Sudha Kautari to present a memento to Professor Shailendra. And I request Mr. C.S. Reddy. बहुत लोगों ने सीखा। Please don't block that pathway, because the life is going on. I request Mr. C.S. Reddy to present a memento to our dear friend Mr. Narendra. So that's from Assam. Thank you everyone.